You always talk about sales. Shall I put it like how to sell anything? I don't think you can sell anything. वो बोलता है कि ना sell me this pen. मैं नहीं यूज करता हूँ पेन. क्या बेचेगा तू मेरे को? What is Amrut's golden rule of selling? One is you have to listen really well. Second, you need to ask the right questions. 10 सवाल पूछो. इतने सवाल पूछो कि सामने वाले को लगे कि आप सच में इंटरेस्टेड हो. Interested people are interesting. अगर हम ये बेसिक चीजें प्रॉपरली और कंसिस्टेंटली फॉलो करें तो बहुत अच्छा तगड़ा सेल्स कर सकते हो. एंड लोग रोते हैं इंस्टाग्राम पे आके, कौन उठा रहा है फोन, कौन इतना बात करे, इतना बकवास स्क्रिप्ट लेके बात करे, कौन उठाने वाला है तेरा फोन. द मैथ हैज टू मैथ. इफ द मैथ इज नॉट मैथिंग, देयर इज नो सैलरी एट द एंड ऑफ द डे. तो एफर्ट तो आपको उतना ही डालना पड़ेगा irrespective of the product you choose. Would you recommend anyone to have a job in 2025 rather than just starting something of their own? Yeah, I have a job and do something side by side. I tell you why. Like if your business fails, तू बिक मांगेगा. People get really scared. I was at a wedding. I guess someone's ATM pin, and that guy was very scared. I asked him. He's like, yeah, of course. आप क्या कर लोगे? And then I guessed it. He's like, dude, I hate you. And he left the venue. If you're interested in someone, the other person will find you interesting. Yes. All the best. Dude, this is gold. Alright, ladies and gentlemen, this is a Pod with Nick, and I welcome you to the yet another episode. A sales master, communication, 2 times world record holder, TEDx speaker, entrepreneur, 14 years of experience on field. Amrut, bro, Namaste. welcome. You said namaste, man. Yeah, of course. Namaskaram. Namaste, यार, I love namaste, people. namaste. I love people who say namaste, namaskaram. Oh, really? हाँ, मुझे बहुत I'm a ईशा follower, तो वहाँ पे ना नमस्ते, नमस्कारम ये सब चलता है. अच्छा. So they want to stay little roots के अंदर. That's nice. I love roots in that case. Yeah. But I just want to confess something before it starts. I dissed you yesterday. हमने dinner plan किया था. I didn't come, so apologies on that. मैंने कहा record पर आए तो मैं बताऊँ कि मैं नहीं आया. And he stayed his beautiful एक Aero City में बहुत अच्छी जगह पे आप रुके जहाँ पर कोई इंसान नहीं था. Yeah, I liked it. So, how did you feel up like traveling from you've been to Delhi a lot of times. Yeah. कैसा लग रहा है कि दिल्ली से मुंबई आके एकदम? Mumbai से दिल्ली, you mean? Sorry, fuck. मुंबई से दिल्ली. So I really like Delhi. I like the culture. It's very different, right? जो भी बॉम्बे वाला culture है वो काफी अलग है और दिल्ली culture is very different. People are different. The lifestyle is different. When you say different, क्या scene different क्या है यहाँ पे मतलब? देखो हम लोग वहाँ पे छोटे डब्बे में रहते हो और आप लोग घर में रहते हो. There is a major difference, right? You have a home which looks like a house. Like I got off the cab नीचे and when I saw the other house, इतने में मैं एटलीस्ट एक बिल्डिंग खड़ा करके उसके ऊपर 3 माला पार्किंग देके उसके ऊपर 6 माले की बिल्डिंग खड़ा कर सकता हूँ बॉम्बे में. And here you have more space. Plus food is amazing. Food is different. Of course, you get good food in Mumbai as well. जो वहाँ का जो local food है, it's good there. यहाँ का local food is phenomenal यहाँ पे. I like the people of Delhi, energetic people, and they have fun. And yeah, because see, I've worked, right? मैं जब job करता था. But ऐसा एक ना कुछ चल रहा है मतलब मेरे को नहीं मिला वो चीज़. I met Mumbai people. I met you. I've a couple of friends from Mumbai, and they're like very chill people. And कहीं पे ना I think there is always Delhi versus Mumbai. Mumbai people hate Delhi. Mumbai girls hate Delhi guys. And I don't know why this thing is there. ऐसा कुछ है क्या सीन? Honestly, like आपके पास लाइफ में इतना टाइम है क्या to think all this? Like आप कितने फोकट हो अपने लाइफ में that you're worrying about Mumbai versus Delhi? Like you have 500 things to do in life. Honestly नहीं. If you're really someone who likes humans, you'll have to just accept we are all different. Yeah, चलता है इसमें क्या इतना क्या सोचना है. But just to Mumbai women out there, women girls, क्या बोली जा रहा हूँ यार, Mumbai girls out there, तुम सुंदर हो यार. अच्छा हाँ, मुंबई के क्या सुंदर है. I say thank you on their behalf. I don't represent them, but still. अच्छा, I just want to get into your zone of the main thing जो sales है. ठीक है, that is something key on your profile. अगर तुम्हारी प्रोफाइल पे जाना, you always talk about sales. Major, ठीक है. मुझे ना सबसे पहले ये myth break करो. Is it real कि एक कहा जाता है you can sell anything. Is it really true? How or shall I put it like how to sell anything? I don't think you can sell anything. ये वो बोलता है कि ना sell me this pen. हाँ. मैं नहीं यूज करता हूँ पेन. क्या बेचेगा तू मेरे को? You can only sell things to people who really are looking forward for something and there is a need to something. Like the basic definition of sales is when need meets right supply, that's when sales happens. Right? For example, if I want to sell a Rolls Royce to you and you'll be like, मेरे को नहीं चाहिए Rolls Royce, मेरा life खुश है यार.
मैं क्यों लूँ 5 करोड़ का स्ट्रेस अपने सर पे? You will not buy it even if I try the best pitch on the planet. If you don't need something, you'll not buy it. Impulse buying is different, but you can't sell anything to anybody. You have to be very precise. इस चक्कर में ना लोगों की बैंड बज जाती है. लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि मुझे एक स्क्रिप्ट थमा दिया, एक डेटाबेस दे दिया रैंडम लोगों का कि कॉल पे कॉल. हाँ, वो बंदा कहीं तो बेचारा अपना रेस्टोरेंट में गया था, उसने अपना नंबर लिखवाया था, अब उसको कॉल्स आ रहे फॉर इंश्योरेंस. उसका लाइफ सेट है यार, उसको नहीं चाहिए इंश्योरेंस. तो उसको फोन करके क्या उखाड़ लेगा? मतलब यू कांट डू मच. सो यू सेल्स हैज टू बी सिस्टमैटिक and it has to be done in the right way. So I don't think you can sell anything to anybody, but you can try different ways to sell the right thing to the ideal customer. Because कैसा होता है ना बहुत बार कि मैं बोलता हूँ कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है, बट वो इंटरेस्ट से ये ले भाई मेरा पैसा. ये जो जर्नी है ये आप स्किल के थ्रू डेफिनेटली कर सकते हो. बीच में आपने एक चीज बोली कि देयर हैव बीन रैंडम कॉल्स जो आती हैं ऑल ओवर इंडिया. स्पैम कॉल्स आती हैं. Yeah. उठाया, इंश्योरेंस लेनी है, गाड़ी का ये कराना है, RCA ले लो, ये ले लो, फलान ले लो. हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? इज दिस द राइट अप्रोच? या अगर इफ यू हैड टू बी कि आई गिव यू अ पावर कि यार अमरुद भाई इसको चेंज कर दो, सिस्टमैटिक कर दो, कि जो लोग वहाँ पे बैठे बेचारे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दिन की वो 200 कॉल मारते होंगे यार, और शायद एक होता होगा कन्वर्जन, शायद एक भी नहीं. आधे लोग तो गाली दे के फोन रखते हैं. इफ यू हैड टू कन्वर्ट द स्पैमिंग ऑफ कॉल्स, हाउ वुड यू डू इट? I would first of all sit with the owners of the company and tell them, why are you burning your cash? Because this is zyada. I would say good 90+% of these cold calls are useless. Organization क्या करता है, स्प्रे और प्रे मेथड बोलते हैं उसको, कि स्प्रे एंड प्रे, कि उसमें से लाइक इमेजिन यू हैव अ गन एंड ड्र करके ऐसा मार दिया कि अरे बस एक लग जाए. ये मेथड में कंपनी चल रही है. उनको लगता है कि जस्ट बिकॉज आई हैव अ नंबर एंड देयर इज अ ह्यूमन बीइंग ऑन द अदर साइड, मेरा सेल्स हो जाएगा. और इस चक्कर में होता क्या है, कंपनीज बोलती है ये लो इतना डेटाबेस, उसमें तो निकलेगा ही निकलेगा. हाउ डज इट मेक रियली मेक सेंस? इट मेक्स नो सेंस. अगर मेरा बस करे तो आई वुड जस्ट चॉप गुड 90% ऑफ द कोल्ड कॉल्स, बिकॉज दे जस्ट डोंट मेक सेंस. आप बहुत सारे इंडस्ट्री में देखो, कोल्ड कॉल का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिकॉज दे हैव फिगर्ड आउट कि इसके पीछे इतना पैसा जला के, इतना रिसोर्स जला के कुछ फायदा नहीं है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंपनीज है, वो वही सड़ा हुआ डेटा फिर से अपने ही रेप को देके बोलते हैं कि तू परफॉर्म नहीं कर रहा. It just makes no sense. There are people, चलो कंपनीज ने सही डेटाबेस ले भी लिया, जो बंदा सामने फोन पे बैठा है वो रटा स्क्रिप्ट पढ़ रहा है. हेलो सर, मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, क्या आपको इंश्योरेंस चाहिए? आंसर क्या होने वाला है? नो, नॉट एट ऑल. आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज देयर इज नो ह्यूमन कनेक्शन. सो ये सब ना अंडशंट चल रहा है फिलहाल. एवरीवन इज लाइक ट्राइंग टू फिगर इट आउट. एंड कोल्ड कॉल के दुनिया में फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा है ना, बिकॉज वी एजुकेट अ लॉट ऑफ पीपल ऑन इंस्टाग्राम. हजारों कमेंट्स देखे हमने cold calls के around, and the employee blames the management. The management is blaming the employee, not realizing the actual party, which is a customer, उसको कोई बात ही नहीं कर रहा है. They're not going to the right people. Just imagine if I call 100 wrong people, how will it make me achieve my numbers? Nothing. So गलती मैनेजमेंट की पहली है कि तुमने ये अप्रोच लिया. दूसरा गलती है कि मैनेजमेंट में होने के बावजूद तुमने प्रॉपर कोल्ड कॉलिंग का जो पूरा फॉर्मूला उसको सॉर्ट नहीं किया. आर यू कॉलिंग द राइट पीपल? इफ यू डोंट आंसर दैट क्वेश्चन, एवरीथिंग यू डू आफ्टर दैट इज वेस्ट. सो अगर मैं क्लीन करना चाहूंगा तो पहले मैनेजमेंट बोलेगा तुमको पता है कि इसको बेचना है, ग्रेट. तुमको पता है वो खरीदने वाला कहाँ पर है? बोलेगा हाँ काइंड ऑफ पता है, ठीक है. देन लेट्स टॉक अबाउट डिसाइडिंग कि उसको कॉल करना है कि नहीं करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, करने के बाद कॉल आंसर करने के बाद उसका कॉन्वर्जेशन कैसे होगा. स्क्रिप्ट तो दिया है लेकिन बात कैसे होगी. सो ये सारी चीजें सॉर्ट किए बिना पब्लिक बस कॉल उठा रहा है, मैसेज आता है, लोग डिप्रेस्ड है. इंडिया में सेल्स वाले कितने तो डिप्रेस्ड है, क्योंकि उनको हर दिन हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स थमा दिया जाता है. वो बेचारा, अरे वो भी तो चाहे ना 1-2 सेल हो, भले से कंपनी पैसा कमा रही है, बट वो भी चाहता है खुद का मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन मिले ना यार. चलो सैलरी आप दे रहे हो, बट एज ए ह्यूमन बीइंग साइकोलॉजिकली आपको बहुत हिट करता है कि मैंने 60 लोगों को फोन किया, 70 लोगों को फोन किया, एक ने भी नहीं खरीदा. एंड ब्लेम किस पे जाता है? जो सबसे नीचे होता है, एग्जैक्ट, बिकॉज ऊपर को बोलने वाला कोई है नहीं. Then of course through Instagram I vocally very tell them, I tell everybody कि भाई गलती कहाँ पर है वो ढूंढो, फिर बाद में जाके इसको रिजॉल्व करो. So I don't think majority of the cold calling. अब तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था कोल्ड कॉल का कल्चर यार, कुछ आइडिया है? I think it would be a Western concept for sure. अपने यहाँ पे तो लोग डोर टू डोर, it's very difficult. आपको याद है पहले जमाने में आंटियां आती थी, आई एम नॉट श्योर इफ हैपेंस इन मुंबई, दिल्ली में था, मैं बहुत छोटा था, स्कूल में था, दरवाजा खटकाती थी, आप ये निरमा का पैकेट ले लीजिए, मार्केट में इतने का है, हम इतने का दे रहे हैं. तो दिस वाज डोर टू डोर सेलिंग. अभी भी होता है.
अभी भी होता है बड़े डिफरेंट स्केल्स। एफएमसीजी कंपनियां जो है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बंदे होते हैं रीजनल, वो जाके दुकान में बैठते हैं, वो चल रहा है अभी भी। बहुत सारे टिफिन मेकिंग टाइप के कंपनीज है जो लेडीज कम्युनिटी में बहुत चलते हैं, वो भी चल रहा है। मेथड है अभी भी, लेकिन इसका इफ यू लुक एट द ओरिजिन आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ ग्लोबल ओरिजिन। अब सब लोग ने अपना अपना तरीका निकाला ढूंढने का। वो सब्जी वाला जो ले ऐसा बोल के आता है, वो ना बेच रहा है, वो बेचारा वो तब से कर रहा है, टेक्निकली तो वो भी सेल्स वाला ही है। सो इंसान that is a very genuine sales या वाला guy. वेरी जेन्युइन सेल्स वाला है, एंड वो नीचे से ऊपर चिल्ला रहा है, है ना। उसका प्रोस्पेक्टिंग अलग लेवल पे चल रहा है, उसकी मार्केटिंग का, उसके लिए लोग रुक रहे हैं। यू सी उसके पास टारगेट ऑडियंस फिक्स्ड है हाँ कि लेडीज आर द वंस हु आर एट होम, जनरली हु आर अवेलेबल, दे आर अवेलेबल इन द आफ्टरनून। वो आफ्टरनून को आएगा जब लंच वंच खत्म हो गया होगा। द वन हु इज लीडिंग द हाउस, इफ शी इज जनरली शी वुड बी अवेलेबल इन द आफ्टरनून, की घर का सब हो गया होगा, एंड शी वुड बी देन अवेलेबल, एंड तभी जाके वो बेच रहा है। भाई उसने सॉर्ट कर लिया है अपना बिजनेस, और अपन इतना सारा टेक लेके बैठे हैं, और अभी तक भी बस कॉल पे कॉल, स्प्रे और प्रे चल रहा है। तो यार अच्छा, if you I'm sorry, I'm asking too many sales questions That's starting से ही, but एक ना कुछ, what is Amrut's golden rule of sales, of selling? listen really well. So you go to people, and then considering that you have done your prospecting right, considering that you know that you're going to the right people, once you go there and आपको एक potential client दिखता है, जब आप अपना thought pitch करते हो, आप जब सवाल पूछते हो, आप क्या सुन रहे हो as a response, that will decide the direction of that conversation. Generally tendency ऐसी होती है कि मुझे बेचना है, तो निक को तो मैं कैसे भी बेचूंगा बस। फिर निक का इमोशन क्या है, निक को इंटरेस्ट है कि नहीं, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, इसके बारे में हम हार्डली बात करते हैं। सो माय गोल्डन, देयर आर कपल ऑफ रूल्स दैट आई फॉलो। वन इज यू हैव टू लिसन रियली वेल। सेकंड, यू नीड टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। लोग है ना पिच करना चालू करते हैं। आपने भी कोल्ड कॉल्स जो है, यू नो वन ऑफ द कोर रीजंस व्हाई कोल्ड कॉल्स डोंट वर्क, बिकॉज द पर्सन इज कॉलिंग इज ओनली वरीड अबाउट देमसेल्व्स। वो बस खुद का सोच रहा है, मुझे बेचना है। बट सेल्स सामने वाले के बिना कैसे होगा? तो लोग सवाल नहीं पूछते, दे डोंट आस्क इनफ क्वेश्चंस। मैं जनरली लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है आपको 5 सवाल पूछना चाहिए टू द कस्टमर अबाउट देयर नीड, अबाउट देयर चैलेंजेस इन लाइफ, मैं तो बोलता हूँ 10 सवाल पूछो। इतने सवाल पूछो कि सामने वाले को लगे कि आप सच में इंटरेस्टेड हो। एंड फाइनली आई टेल पीपल कि इंटरेस्टेड पीपल आर इंटरेस्टिंग। जब मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके लाइफ में, आपको लगेगा बहुत इंटरेस्टिंग बंदा यार, इससे मैंने बात किया, कितना मस्त आदमी है, देख ही इज रियली कंसर्न्ड। अगर हम ये बेसिक चीजें प्रॉपरली और कंसिस्टेंटली फॉलो करें तो बहुत अच्छा तगड़ा सेल्स कर सकते हो आप। एंड लोग रोते हैं इंस्टाग्राम पे आके, कौन उठा रहा है फोन, कौन इतना बात करे, इतना बकवास स्क्रिप्ट लेके बात करेगा, कौन उठाने वाला है तेरा फोन? इट मेक्स नो सेंस। सो एंड बाय द वे आई थिंक निक, लोगों ने अभी तक सेल्स को सीरियसली नहीं लिया है। एक इंजीनियर होता है ना, वो इंजीनियरिंग सीख के आता है, उसकी तैयारी होती है। जब वो आता है फ्लोर पे, ऑफकोर्स ट्रेनिंग भी मिलती है उसको फ्लोर पे, बट वो पूरी तैयारी करके आता है, उसका फंडामेंटल्स क्लियर होता है, तब उसको जॉब मिलता है अल्टीमेटली। बट सेल्स में कैसा है ना, अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग मजबूरी में सेल्स एज अ जॉब ले लेते हैं, या फिर मेरा दोस्त जा रहा है तो मैं भी ले लेता हूँ, बाकी लोगों को लगता है अरे बहुत कूल जॉब है, घूमने मिलेगा। ये सारे चीज़ों में लोग भूल जाते हैं कि सेल्स का एजुकेशन होता है बाकी स्किल्स की तरह। तो फंडामेंटल्स तो ऑफकोर्स डेफिनेटली इज मिसिंग। उस चक्कर में क्या होता है, इंसान करता है तुक्का, जुगाड़, ये सारी चीज़ें लगा के सेल्स करता है, और कभी कभी सेल्स बैठ जाता है। फिर वो कॉन्फिडेंस यूज करके अपने गलत मेथड को लेके लाइफ में चलता है आगे, एंड ही और शी देन थिंक्स कि दिस इज हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स। तो अगर इंसान एक प्रॉपर ये सिंपल मेथड भी फॉलो करे, जो मैंने 3 चीजें अभी बताई है आपको, दैट लिसन वेल, आस्क more questions, and then try to really connect with the other person and try to resolve their issue। अगर आप इतना बेसिक भी करो ना, तो बहुत अच्छा आप सेल्स कर सकते हो। अभी एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक 12वीं का बच्चा है, वो पास हो गया, अब उसको जॉब चाहिए। आई वुड सजेस्ट प्लीज 12वीं में अपना पढ़ाई मत छोड़ो, ग्रेजुएशन प्लीज कंप्लीट करो। बट कंसिडर सिचुएशन जहां पर बहुत लोग नहीं कर पाते, और दे आर डूइंग डिस्टेंस, हाँ दे आर डूइंग डिस्टेंस, या फिर बट पढ़ना मत छोड़ो। दैट इज व्हाट आई वुड टेल एवरीबॉडी। सो कंसिडर, चलो आपको 12वीं के बाद भी आपको जॉब करना है, बिकॉज लाइफ इज डिफिकल्ट, बैंड बजी पड़ी और घर चलाने के लिए पैसे कमाने। तो चलो आपको जॉब लग भी गया, आप एक 20-25 हज़ार की सैलरी पे आप काम करोगे, आप वही रोटेशनल शिफ्ट पे, बिकॉज मैंने बीपीओ में काम किया है गुड 4.5 ईयर्स, तो मुझे पता है बीपीओ का लाइफ कितना डिफिकल्ट होता है। और मैं नाइट शिफ्ट करता था, 12-12 घंटे हमने भी किए हुए। सो आपके रोटेशनल शिफ्ट चलेंगे, आपको स्क्रिप्ट थमा दिया जाएगा, वही आपकी क्यूसी होती रहेगी, आप वही सब बोलते रहोगे। इस चक्कर में क्या होता है ना, इंसान बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आप देखोगे बहुत सारे हमारे सेल्स के रिप्रेजेंटेटिव जो बीपीओ से करते हैं, उनके डार्क सर्कल्स बहुत मिलेंगे आपको, बिकॉज दे आर रियली स्ट्रेस, दे आर नॉट स्लीपिंग वेल। ये फ्रस्ट्रेशन कहाँ आता है? लैक ऑफ एजुकेशन।
एक इंजीनियर 3-4 साल घस के जाके एक जॉब रोल अज्यूम करता है, फिर वो जाके काम करता है, ठीक है। स्ट्रेस वहां पर भी है, यहाँ पर भी। हमारा कैसे होता है, हमने 12वीं तक कॉमर्स या फिर साइंस पढ़ लिया या आर्ट्स पढ़ लिया, उसके बाद सडनली हम ऐसे फील्ड में घुस गए विच इज अ स्पेशलाइजेशन फील्ड, और वहां की हमको एजुकेशन है नहीं। एजुकेशन क्या है, वो जॉब मिलने के बाद 7 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसके बाद टेस्ट होता है, पास हुआ तो सब ग्रेट, पास होते हैं उसमें, सब पास हो जाते हैं, पास हुआ तो ग्रेट, नहीं पास हुआ तो फिर से रिट्रेन करके डाल देंगे, बिकॉज उनको तो जमा करना है ना लोगों को। अब आपके पास एजुकेशन है 7 दिन की। अब मुझे बताओ, आप 7 दिन की एजुकेशन में क्या उखाड़ लोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन टू रिजॉल्व रियल लाइफ इश्यूज, बिकॉज जैसे वो कॉल उठाते हैं आप, जैसे वो बीप बजता है और वो डायलर लगता है और सामने वाला बोलता है हेलो, रियल लाइफ आपको मुंह पे आके मारता है एकदम मस्त। द रियल लाइफ हिट्स यू रियली हार्ड। दैट इज व्हेन एवरीथिंग चेंजेस, व्हेन दैट बीप हैपेंस एंड सामने वाला बोलता है हेलो, यू हैव कॉल्ड देम एट 11 o'clock इन द मॉर्निंग। वो शायद अपनी वाइफ से झगड़ा करके आया हुआ है बंदा, ठीक है, और उसके लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, उसकी बजी पड़ी है, तुमने 11 बजे उसको कॉल कर दिया। अब तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो वो 7 दिन की ट्रेनिंग से तुम ये साइकोलॉजिकल चैलेंज को ओवरकम करने के बाद अपना प्रोडक्ट जो उसको नहीं चाहिए था वो तुम बेचने वाले हो। ऑल द बेस्ट विद दैट। it's like negotiating with a terrorist कि यार तुम बाहर आ जाओ अब। हाँ, इट इज लाइक तू ये सब छोड़ दे, अब से तू एकदम ब्लिसफुल लाइफ जी, ये मत कर। इट्स इम्पॉसिबल, राइट? ये सारे एक्सपेक्टेशंस हमने सिस्टम डिजाइन करने के टाइम भी बना दी जो कंपनीज चला रहे हैं। तो अभी बेचारा वो क्या करे? चलो कंपनी को नहीं करना, कंपनी से पैसे नहीं, उसको भाई वो हायर एंड फायर वाला चल रहा है, 100 लोग को लाओ, 20 टिके बढ़िया और 80 डालो, इसको उठाओ, बस ये चल रहा है। व्हाट शुड दे डू? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप उनमें से है जिनको सिर्फ अपने कंपनी 7 दिन का एजुकेशन मिला है, पहली बात, सबसे सस्ता फॉर्म ऑफ एजुकेशन है फ्री का यूट्यूब वीडियोस। जितने हो सके बिना कोई फिल्ट्रेशन रखे, जितने हो सके वीडियोस देखो। किसके वीडियोस देखो? जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब, सेल्स आइडियाज, सेल्स टेक्निक्स, नेगोशिएशन टेक्निक्स, कॉल क्लोजर टेक्निक्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक्स। यूट्यूब पे इतने तरीके से लोगों ने सेल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है ना, कोई एक बंदा ऐसा बोल दे कि उसको सब कुछ आता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज शायद आप जब बोल रहे हो एज एन एक्सपर्ट दैट आई नो एवरीथिंग, समवन एल्स इज क्रिएटिंग अ बेटर सोल्यूशन। जैसे मैं आज तक बुक पढ़ता हूँ, जैसे मैं भी यहाँ पर आया गाड़ी में बैठ के, मैंने भी आधा घंटा बुक पढ़ा कि भाई ये सेल्स वाला क्या बोल रहा है, ताकि मैं कुछ सीख पाऊँ, ताकि लोगों को जब मैं सिखाऊं तो ज्यादा सीखे। सो वन, एजुकेशन, जो फ्री का एजुकेशन है सबसे बेस्ट होता है। जब तक आप ऐसे पॉइंट पे ना आ जाओ कि आपको लगता है अभी आपने सब देख लिया, बट ये मेरे को काम नहीं आ रहा, ये इम्पैक्ट नहीं ला रहा मेरे कॉल्स पे, देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन बुक्स। बुक्स तो आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो। अभी आप बोलोगे कौन से बुक्स? जस्ट गूगल बेस्ट सेल्स बुक। ब्रायन ट्रेसी फॉर एग्जांपल, ही इज एन अमेजिंग गाय। आई थिंक 40-50 साल उन्होंने सेल्स के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में इतने सारे चीज़ें उन्होंने बोली। ही वुड बी इन हिज 70s नाउ। उठा लो उनके बुक फॉर एग्जाम्पल, ब्रायन ट्रेसी कौन से भी सेल्स के बुक उठा लो, छोटे होते हैं, क्रिस्प बुक होते हैं। देन आई वुड आस्क यू टू एक्सपेरिमेंट विथ थिंग्स। बहुत सारे इंडियन ऑथर्स है, फॉरेन ऑथर्स है, उनके बुक उठाओ, अपनी भाषा में उठाओ, रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल तो उसमें उठा लो, पढ़ो। यहाँ पर है ना निक, यहाँ पर लोग गिव अप कर देते हैं। अब वो 7 दिन का एजुकेशन वाला बंदा जो है ना, उसको ये रियलाइजेशन नहीं है कि खुद की एजुकेशन 2-3 साल चलने वाली है। उसको चाहिए ट्रिक्स। अगर आपको ट्रिक्स करना है तो जादूगर बनो, सेल्स वाला मत बनो। इट्स प्रीटी सिंपल। ट्रिक्स इज गुड फॉर मैजिशियंस। As someone who has been a magician in his life before, tricks is nice. It's good for magician because वो ट्रिक करने के बाद उसको पैसे मिलते हैं। Sales is not luck, right? Very hardly it is luck यार। Very hardly. I would say it's 5% luck. होता है बहुत बार कि लगाया कॉल, अरे मैं तेरा वेट कर रहा था, थैंक यू फॉर कॉलिंग, अरे ले भाई पैसा बेच रहा हूँ, बहुत कम। बट यू कांट एक्सपेक्ट, आई वुड नेवर एक्सपेक्ट एज अ सेल्स पर्सन टू एवर फाइंड लक। I will only look forward a best opportunity or higher potential. So ये एक माइंडसेट हो गया कि अभी मुझे ये ना, ये बुक पढ़ूंगा ना, अभी मेरा लाइफ चेंज हो जाएगा। नहीं होने वाला चेंज। तुमको समय लगेगा अभी जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने में, फिर तुम्हारे बस की क्या है इसको समझने में, कि तुमको कितना याद है। 100 लाइन्स पढ़ोगे ना, 3 याद रहेगा, 3 तुमको जचेगा, और तुम वो 3 बार बार यूज करोगे जब तक या तो तुम बोर हो जाते हो, नहीं हो जाते हो, या सामने वाले को इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, आपने ऑनलाइन एजुकेशन ट्राई कर लिया, आपने बुक्स ट्राई कर लिए, उसके बाद आता है प्रोफेशनल कोर्सेज। दिस इज वेयर आई वुड वांट यू टू इन्वेस्ट। अगर आप सच में सीरियस हो और एक टाइम पे जाके वो 20,000 से 2 लाख तक कभी पहुंचना चाहते हो इन योर एंटायर लाइफ टाइम, सेल्फ एजुकेशन इज द ओनली वे, देन ओनली इन्वेस्ट इन दीज कोर्सेज। कोर्सेज बहुत सारे सस्ते भी अवेलेबल है। जैसे मेरा एक प्रीमियम कोर्स है जो मैंने सिर्फ लाइक इंसान बैठ के जब बियर पीता है ना, वो ज्यादा खर्चा कर देता है, मेरा कोर्स उससे सस्ता है, मैंने ट्राई किया उसको, लाइक वी हैव मेड इट एक्सेसिबल टू पीपल। आप बिलीव नहीं करोगे, वो कोर्स भी लोग कंप्लीट नहीं कर पाते जो इतना सस्ते में अवेलेबल है। What is the issue? Focus, challenges. People are extremely distracted. People are
people are only worried about the problem when the problem is occurring to them. जैसे वो issue थोड़ा solve हो गया ना, फिर वो Calm down. chill करते एकदम कि अभी life अच्छा हो गया, इसके बाद अभी कुछ नहीं होगा, and then it hits back. It's a cycle. So one, focus. Second, आप 1000 लोगों को उठाओ, उसमें से खाली 10 लोग होंगे जो सच में सीखना चाहते हैं, बाकी खाली प्रिटेंड करते हैं वो सीखना चाहते हैं। बस एक सांत्वने के लिए, हाँ मैंने कोर्स खरीद लिया, अब मेरा लाइफ मस्त हो जाएगा। जो सीखा है वो इंप्लीमेंट किया नहीं है, वीडियोस भगा भगा के देख लिए। हम लोग कंप्लीशन रेशियो देखते हैं ना, कभी कभी मेरे को मन करता है कि फोन करो, बोलो पैसे रिटर्न ले ले, तू क्यों वेस्ट कर रहा है? बिकॉज इट्स अ स्मॉल फी एनीवे, आई वांट टू गिव इट बैक कि भाई यू जस्ट वेस्टेड योर टाइम, टेक द मनी बैक। अल्टीमेटली देन देयर आर दीज रियली हाई एंड कोर्सेज, बहुत सारे फॉरेन क्रिएटर्स हैं जो ट्रेनिंग्स होस्ट करते हैं। इंडिया में अभी तक तो मैंने एक स्ट्रॉन्ग ओपन हाउस कोर्स सेल्स के लिए ऐसा एज ऑफ नाउ तो देखा नहीं है। देयर वुड बी पीपल, बट बहुत सारे फॉरेन क्रिएटर्स हैं जिन्होंने ना सेल्स को बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मलाइज किया हुआ है। दे डू दीज वर्कशॉप्स जो बहुत महंगे होते हैं, दे कैन गो अप टू कपल ऑफ $1000 ऑल्सो। बट जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओ कि अभी यार ये सब ऐसा हो रहा है, कॉल नहीं सॉर्ट हो रहा है, मुझे दे, मैं खत्म करके देता हूँ, ये सारा करने के लिए आपको जाने वाला है 3-4 साल। बाय द टाइम यू एक्सपेरिमेंट विद ऑल दिस, क्योंकि कैसा होगा, आपका एक बार लेवल बढ़ गया तो आप वो जॉब छोड़ दोगे पहली बात तो, यू विल गो फॉर अ बेटर जॉब। आप बन जाओगे अच्छे रिसोर्स, आपको प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी अगर आप गलती से बन गए तो। उसके बाद क्योंकि कोई कंपनी अच्छा सेल्स वाला खोना नहीं चाहता, वो डबल सैलरी दे देगा लेकिन वो खोना नहीं चाहेगा। चलो आपका ग्रोथ वहाँ पर हो गया, फिर एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, फिर आप दूसरी इंडस्ट्री ढूंढोगे या कहीं और जंप मारोगे, वहां जाने को मालूम पड़ेगा अरे यार मैं तो गोल्ड फिश हूँ, ये सब शार्क्स है, ये सब तो काट खाएंगे मेरे को, क्योंकि हर इंडस्ट्री का शार्क होता है। उस इंडस्ट्री में उसने 10-15 साल बिताए होते हैं, आप नए नवेले होते हो, आप तो 12th पास किए हो ना, जस्ट यू आर व्हाट 2021 बाय दिस एंटायर थिंग हैपेंस। देन वहां पर बहुत सारे पप्पाज होते हैं जिन्होंने बहुत खेला हुआ है, बड़ी बड़ी मम्मीज होती है, वी नो व्हाट डू यू नो, देन यू गो अडेप्ट एंड देन यू ट्राई टू अपस्किल। ये जो जर्नी है ये कंटिन्यूस जर्नी है, लाइक एनी अदर प्रोफेशन। ये बात लोग जब समझ लेना तब उनको सेल्स का वैल्यू, इंपॉर्टेंस दोनों समझ में आएगा। आई थिंक आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग, 2-3 चीज़ें हैं, मैं पूरे जो सम किया मैंने इसे, एक ना द वे यू सेड इट, मैंने आपने कहा ना कि मैंने कहा व्हाई डोंट पीपल कंप्लीट इट, इट्स लैक ऑफ फोकस। ये ना मैंने अपने डोमेन में भी देखा है, और नॉट एनी डोमेन, एक अपना डोमेन छोड़ो, एंटायर जितने भी तुम स्पेक्ट्रम ऑफ डोमेन्स है ना उसमें देख लोगे तो देयर आर 90% पीपल हु टॉक एंड देयर आर 10% पीपल हु डू। सो वो सिर्फ फर्क है, द डूअर्स आर लेस, द टॉकर्स आर मोर, एंड दैट्स व्हाई द डूअर्स आर ऑन द टॉप। यस, पीपल सिट एंड क्राई अबाउट अरे लाइफ कितना अनफेयर है, तू बेवकूफ है भाई, because fucking you didn't move, you did not move, you were just chilling। it's like reading about basketball and then expecting में जाके डंक करेगा। औकात के बाहर सोच रहा है तू, skill point of view से the world I want you to repeat this, I it's still echoing in my head. So you said that ki if you're interested in someone, the other person will find you interesting. Yes. Where did you get this from? बहुत अच्छा quote. I don't know. I think I was reading a book by Chris Voss, if I'm not wrong. Or maybe I was doing a course by Chris Voss. And during one of his conversations, ऐसा उसने बोल दिया कि ऐसा, you know why? Because interesting people are interesting. Like, dude, this is like, yeah, this is gold. You know why? Because ये जो line है ना, ये negotiation के टाइम बहुत काम आता है। क्योंकि आपने एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल लाओ, अभी तो हम लोग 20,000 जो बंदा ले रहा है वो एक बेसिक प्रोडक्ट सेल कर रहा है जिसका प्रीमियम 10-15 हज़ार रुपए साल का है। नाउ लेट्स शिफ्ट इट टू से फॉर एग्जांपल समवन इज सेलिंग लग्जरी कार्स, अब वो बेच रहा है 3.5-4 करोड़ का स्टफ। द पर्सन वाज वॉकिंग इनटू द शोरूम, जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ स्किल्स दैट यू नीड टू हैव फ्रॉम द मार्केट नो हाउ, फ्रॉम द प्रोडक्ट स्टैंड पॉइंट एंड फ्रॉम द कस्टमर सर्विस स्टैंड पॉइंट। बिकॉज जो बंदा आ रहा है उसको बड़बड़ नहीं सुनना है। He's like, dude, I want to talk to the person who is really interested in solving my problem. Call it ego or call it whatever. This is the basic necessity. अगर आप सेल्स में हो, अगर आप सामने वाले के प्रॉब्लम में सच में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेल, बिकॉज आपने अभी तक ट्रस्ट और रिस्पेक्ट गेन ही नहीं किया। You know, the most important thing in sales is, especially when the conversation starts, is to earn respect. रिस्पेक्ट तभी आता है जब आप सामने वाले के लिए कुछ करना चाहते हो और अपने बियॉन्ड सोचते हो। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। तो फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन वॉक्स इन, यू विल बी ग्रीटिंग दैट पर्सन एंड यू नो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, एंड द पर्सन से यू नो व्हाट, जस्ट लुकिंग, दैट्स कंप्लीटली फाइन, बट यू वुड बी अराउंड, you would stand around, you would say I'm just there, if you need anything
more than happy to assist you. Hmm. You will not saying, आइए सर खरीदिए इतना अमेजिंग कार है, देखिए 3.5 करोड़ का लाल कलर का इतना अच्छा आपको मिलेगा नहीं, सर एक काम कीजिए 50% दे दीजिए, बाकी आप EMI पे, आप ऐसा करोगे क्या? नहीं करोगे ना, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाएगा ना भाई. लाइक 3 करोड़ की गाड़ी खरीदने जा रहे, यू वुड नॉट वांट दैट एक्सपीरियंस, राइट? नाउ मेरे ये सवाल है, अगर 3.5 करोड़ का प्रोडक्ट बेचने के टाइम इतना कॉशियस हो आप, तो 15,000 के टाइम भी रहो ना, करो ना अच्छा सेल्स वो लेवल पे. वो नहीं, वो बस स्क्रिप्ट चिपका दिया, यही सेल्स है, तुमको क्या मालूम. दूसरा प्रॉब्लम, चैलेंज क्या है, मैंने देखा है हम सेल्स वालों में ना बहुत ईगो होता है कि तू क्या देखा है लाइफ में, मैंने जूते घसे हैं. भाई जूते सब घस रहे हैं. You are not special. Let me tell you this, you are not special. If you think as a salesperson you're special, no, you are replaceable. You are very easily replaceable. It takes one email and one letter to replace you. that is how easy it is. That's fucking true. Yeah, that's true, right? One email, one letter, bye bye, see you, bye, and that's what happens with you. So वो जो साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, अभी वो बंदा जो वहाँ 3 करोड़ का माल बेच रहा है, उसको मालूम है कि एक हफ्ते में या 15 दिन में एक कस्टमर चल के आएगा. उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो सेल कन्वर्ट करना. कभी सोचा ये 200 लोगों को कॉल कर रहे हैं, दैट गाय हैज वन चांस टू मेक इट और ब्रेक इट, और उसका मंथली टारगेट अगर 4 है, ही इज डेड. वो बंदे की तैयारी, वो बंदे को कितना इंटरेस्टेड होना पड़ेगा. सो कमिंग बैक टू इंटरेस्टिंग पीपल आर इंटरेस्टेड, वो ये नहीं पूछेगा आपको क्या चाहिए, वो पूछेगा व्हाट इज योर ड्रीम विद द कार, लाइक व्हाट डू यू वांट टू यूज द कार फॉर, व्हाट आर यू यूजिंग राइट नाउ. वो ये नहीं पूछेगा कार ले लो, वो कभी बात ही नहीं करेगा कार ले लो. वो खाली इंटरेस्टेड रहेगा कि भाई तेरे लाइफ में क्या चल रहा है, तू क्या करता है, कैसे लोगों से हैंग आउट करता है, यू नो व्हाट काइंड ऑफ क्लब आर यू पार्ट ऑफ, व्हाट डू यू डू. एंड यू कैन मैप द सेम क्वेश्चंस विद एन इंश्योरेंस पॉलिसी. You can map the same thing with any other product. Yes. Yeah. You want to go and buy a kitchen knife. Oh, fantastic. What kind of knives are you currently using? Are you unhappy with something? Oh, is it the grip? Is it the weight? What are you chopping nowadays? Are you vegetarian, non-vegetarian? I've asked these many questions. This is the knife for you. And this is why I think it is the right knife for you. What do you think? Now I'm interested. I'm selling you 300 रुपए का knife. Enthusiasm to sell है ही नहीं भाई. अपने को सिर्फ चाहिए पगार at the end of the month. जादू करके. ठीक है. देन सो इफ यू सी द कॉन्ट्रास्ट, मैं 3 करोड़ से 300 कॉन्ट्रास्ट बता रहा हूं. वो बंदे ने इतना सवाल पूछ लिया, नाउ दैट पर्सन विल ओपन अप एंड ही विल से समथिंग. ही विल से नो, दिस इज फॉर माय सन. उसने एक लाइन बोला, आई टोल्ड यू अर्लियर अबाउट बीइंग इंटरेस्टेड, देन लिसनिंग वेल. वो मतलब ये खुद ने खरीद रहा है, इट्स अ सरप्राइज गिफ्ट, पॉसिबली इट्स अ बर्थडे गिफ्ट. सो इज ही टर्निंग 18, 20, व्हाट इज द ओकेजन. अभी तक मैं गाड़ी नहीं बेच रहा हूं, आई एम नॉट सेलिंग. And like, yeah, no, he's just a fan, his friends have got a couple of them, how much does it cost? He'll be like, it would be around about 3 crores or so. But I would like to know more about what is his favorite color and where does he hang out. Can you tell me, show his profile maybe? You just dropped the ball, your little sale pitch, but And it's I still moved. interesting. You're still My interested. goal is not to sell. My goal is what's happening in your life. Sale हो जाएगा यार, वो ठीक है, प्राइसिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम. वो 3 करोड़ का माल बेच रहा है, खरीदने आया, उसके पास पड़ा है बहुत, वो 100 करोड़ लेके बैठा रहेगा 3 करोड़ का माल लेने के पहले, उसको भी उतना अक्ल होगा. But that's fine, it's about 3 crores. But anyway, I'm more curious. How can we customize? How will it look great? Do you want a specific number plate? Whatever they can offer. And then imagine you are that customer and I am that seller. How would you feel if I do this for your son who's now going to turn 18? You have to buy maybe a... I'll feel special. You feel special, right? Yes. You will feel addressed. Now, Yes. you don't buy from me. I spent 45 minutes with you. You were like, yeah, let me think about it, man. Thank you. Have a nice day. And you left. ठीक है? Now look at this contrast. यही जब बंदा कोल्ड कॉल पे हैंग अप करता है, सामने वाला बोलता है नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू, वो फ्रस्ट्रेशन लेके बैठता है. वही जब गाड़ी वाला होता है, दैट्स कंप्लीटली फाइन, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, लेट मी नो. He has a smile, he goes back as if nothing happened. The ability to keep your mind still is the only way to sell great things in sales. Because दिमाग जब हिलता है, या when you are emotionally triggered, imagine you are on a lake and you throw a 5 rupee coin and you can see the coin through 10 feet नीचे है, ठीक है. अब मैंने कंकड़ पे का बड़ा सा, उसके पत्थर पे का इतना बड़ा, अब वो ऐसा मूव हो रहा है. नाउ यू कांट सी द कॉइन, दैट कॉइन इज योर सेल, दैट कॉइन इज योर इनवॉइस. जब आप इमोशंस को ट्रिगर करने देते हो ना, आप सोच नहीं पाते हो, देन यू डू ऑल स्टूपिड थिंग्स ऑफ बीइंग वरिड, ऑफ बीइंग ग्रीडी, ऑफ डूइंग ऑल जुगाड्स एंड जोल्स. Why are you doing all jugards and jolts? Why? Because you can't see through. Now you are going, किधर गया मेरा target? No, but a stable mind will always find through. That person will say, you know what? That's completely fine. How about I visit you Friday 4 p.m. next week, and let's talk about it again. He'll be like, okay, or he'll be like, yeah, maybe just drop a call. You don't have to visit. That's okay. I'll call you.
And during that time, how do you build that rapport? How are you in touch? This is where sales is happening. Same is with real estate. Of course, थोड़ा different है वहाँ पे scene, because वहाँ पे again हर industry का अपना अपना चलता है. How do you classify? I mean, if you are in a course where people are आपके कोर्स में डिफरेंट डोमेन से लोग होते होंगे. सम की टारगेट ऑडियंस मिडिल क्लास, मिड लेवल, और कोई बहुत हाई एंड. हाउ डू यू क्लासिफाई दीज, और हाउ डू यू इवन एज अ सेल्स गाय, हाउ डू यू लुक एट इट, व्हिच इज इजी? I always teach people things which are applicable to the highest tier of their audience. Like मैं जो चीजें सिखाऊंगा आपको, I will teach you things where you can sell a Rolls Royce. फिर आप उसको कहीं भी इम्प्लीमेंट कर लो. Okay. कैसा होता है, unless and until you're dealing with human beings, आपको जो फंडामेंटल्स है वो चेंज नहीं करने होते, और सेल्स के बहुत सारे फंडामेंटल्स कभी नहीं चेंज होंगे. Do you think it is justified to put these much efforts to sell a 300 rupees knife versus a Rolls Royce? Yeah, it is, because see, आपका जो सैलरी है, the proportion that you receive is directly proportionate to whatever you are selling. The number of, they multiply that by number of times. ये आपका टारगेट है, ये उसकी सैलरी है. इन नॉर्मल सिचुएशन में वो बोलता है बंदा कि अगर मैं आपको 20,000 सैलरी दे रहा हूँ तो 20 टाइम्स तुम्हारा टारगेट है, आपको 20 गुना ला के देना है. वो मैथ सॉर्ट करने के लिए, बिकॉज द मैथ हैज टू मैथ. इफ द मैथ इज नॉट मैथिंग, देयर इज नो सैलरी एट द एंड ऑफ द डे. तो एफर्ट तो आपको उतना ही डालना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट यू चूज. क्योंकि कैसा है ना, एफर्ट, अगर प्रोडक्ट सस्ता है उससे एफर्ट कम हो जाए ऐसा कोई गारंटी नहीं है, या प्रोडक्ट महंगा है उससे एफर्ट कम हो जाए ऐसे भी गारंटी नहीं है. पीपल लाइक, फॉर एग्जांपल, व्हेन यू से, फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू सेल अ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जो 100 करोड़ का है, हाउ मेनी मीटिंग्स डू यू थिंक इज गोना टेक टू सेल अ 100 crore प्रॉपर्टी? 7-8. Yeah, it will be in 20s, 30s. Okay. Because there will be so many parties involved, so many terms and conditions, handover, blah blah blah. Good 20-30 जमाना, वो सामने वाला मिल रहा है कि नहीं? Because 100 करोड़ की पार्टी भी मिलनी चाहिए. मिल गया तो बंदा आपको घूमता हुआ नहीं मिलेगा, ऐसा कि कॉर्नर ऐसा पान पट्टी वहां पर खड़ा है तो नहीं मिलेगा वो बंदा वहां पे. वो पता चला किसी और कंट्री में, so you might have to take a flight, go all the way, show him how the property looks like. वो फोन नहीं उठाने वाला है, उसका पीए उठाएगा. फिर आप जाओ, उसको मिलोगे, this is how the property looks like, this is the one who is the person who's selling, legal terminologies, so and then you come back. It's a long process. So effort only goes up, but I think सबको उतना ही effort डालना चाहिए. अगर आपको लगता है कि आप effort ज़्यादा डाल रहे हो and the ROI is less, there is some problem either with you or the product. कभी कभी क्या होता है ना, गलती सेल्स वाले की नहीं होती, गलती प्रोडक्ट की होती है. प्रोडक्ट ही गंदा है भाई, and the other person knows ये प्रोडक्ट गंदा है, मैं नहीं खरीदूंगा. जैसा आपने मुझे बताया कि समटाइम्स प्रोडक्ट फेल टू, सेल्स वाले की गलती नहीं थी, प्रोडक्ट की गलती होती है. हाँ. गिव मी एन एग्जांपल कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट गंदा है. हाँ, अभी रिसेंटली मैंने एक वैक्यूम क्लीनर खरीदा. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड स्पेंड ऑफ माय लाइफ. आई गॉट अ 65,000 rupees वैक्यूम क्लीनर. ओके, व्हाई द हेल वुड यू बाय अ 65,000 rupees वैक्यूम क्लीनर इन योर लाइफ? सो एंड मेरे पास 3,000 वाला भी घर पे है, ठीक है. अभी आप बोलोगे धूल ये भी उठाता है, धूल वो भी उठाता है, लेकिन by the way, I'm not a brand ambassador for Dyson, but वो 65,000 वाला जब डस्ट उठाता है ना, तो उसमें से एक लेजर निकलता है जो आपको डस्ट दिखाता है. हाँ, it shows you the entire layer. तो तुम्हें वो satisfaction मिलता है. And you'll be like, एक सेकंड, मेरे घर पे ये रेगिस्तान कहाँ पर था, मुझे क्यों नहीं दिख रहा था? And then when you clean it, the level of satisfaction that you get. Imagine you have a small kid who's allergic, dust allergy, या उसको asthma है, for example, right? आपके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है कि डस्टलेस होना चाहिए मेरा जगह. जब वो 3,000 वाला, वो भी वैक्यूम क्लीनर है, वो भी थोड़ा बहुत डस्ट सक करता है. अभी जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है, they are solving a specific level of problem, and on the other side they're solving the problem completely. So sometimes the product is just not right for that particular audience. So कभी कभी आप बहुत सारे ऐसे वैक्यूम क्लीनर बिकते हैं जो लगता है पूरा गिमिक है भाई, ये तो सिर्फ हवा खींच रहा है, डस्ट तो उधर बैठा है आराम से, डस्ट इज लाइक अरे नहीं उठाया था मेरे को. And when you do like a comparative between these two, you'll realize, okay, this is just a bad product and this is phenomenal. So a lot of times what is promised is not delivered. This is a small example, of course, this is just a reference, but ये बहुत सारी चीजों में होता है, हर जगह पे होता है. इंश्योरेंस का एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनका क्लेम के टाइम बहुत गड़बड़ होता है, जो ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन घुसा देते हैं कि आप जब क्लेम करोगे आप कुछ नहीं मिलेगा, प्रीमियम आप भर रहे हो इतने साल से. बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस पड़े हैं जहां पर लोग इतना रो रहे हैं कि भाई इतना खर्चा करने के बावजूद इतने साल से प्रीमियम भरेगा, मैं नहीं क्लेम कर पा रहा है, प्रोडक्ट खराब हो गया. अब वो एक फीडबैक जब मार्केट में जाएगा तो कोई नहीं लेगा आगे, कौन लेने वाला है? सो व्हेन द कंपनी इज डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, बहुत सारे बार वो इश्यू होते हैं. दैट्स व्हाई द प्राइस पॉइंट, एंड a lot of times company have a bad product and they want to sell it at a premium. That's where it becomes messy. फिर वो बिल फाड़ते हैं सेल्स वाले पे कि वो कन्विंस नहीं कर पा रहा है.
तुम सेल्स में किसी को कन्विंस नहीं कर सकते. दिस इज द मोस्ट स्टूपिड टर्मिनोलॉजी इन सेल्स बाय द वे. कन्विंस करो अपने कस्टमर को, नहीं कन्विंस कर सकता है भाई तो किसी को. बट यू नो मेरे को इंश्योरेंस से याद है, देयर वाज दिस फकिंग स्कैम दैट हैपेंड. हाँ, जहाँ पर लोग ना बहुत झूठे वादे करते हैं कि हाँ. हाँ तो do you know of anything कि is it I know this is not ethically right हाँ. to but sometimes तुम इतना प्रेशराइज हो जाते हो कि तुम्हें अपनी सेल करने के लिए ना हाँ. you have like मैं इंश्योरेंस बेच रहा हूँ. हाँ. सर बस 10,000 हाँ. तुम्हें 1 करोड़ तक का प्रीमियम मतलब रहेगा, कवर रहेगा, ये रहेगा जो बराबर. एक्चुअली 5 लाख का है फॉर एग्जाम्पल. और उसके साथ देखो ये प्लस एड ऑन है 95 लाख का, जो नहीं बताया कि वो बहुत क्रिटिकल इलनेस में है या फिर वो किसी चीज में है. करेक्ट. वो बीच का जो गैप खा गए. एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ सेल्स पीपल डूइंग दिस. करेक्ट. तो दिस इज एथिकली वेरी रॉन्ग. दिस इज हरामी बना. हाँ, ये चोर सेल्स वाला है. ऐसे सेल्स वाले को ना लात मार के दरवाजे से बाहर फेंकना चाहिए. लाइक उसको जब शिफ्ट पे हो ना, उसका हेडफोन निकालो और लात मार के बाहर डालो. बिकॉज दिस वन पर्सन, क्योंकि उसके पास स्किल नहीं है टू आस्क बेसिक क्वेश्चंस, टू फॉर्म प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड देन टू पिच अ प्रोडक्ट, बिकॉज उसका स्किल नहीं है, वो कर रहा है झोल जुगाड़. इसमें क्या हो रहा है, बहुत बार कंपनी की गलती होती नहीं है. ये बैठे होते हैं अपने घर पे या फिर कॉल सेंटर में जहां अनमॉनिटर्ड होता है बहुत बार, एंड आई डोंट नो व्हाट द क्वालिटी कंट्रोल इज देयर फॉर दीज गाइस. वो क्या करता है, उसके टारगेट अचीव नहीं हो ना, अब वो हाथ पैर मारने लग जाता है. अब वो हाथ पैर मारने जब लगेगा, डू और डाई वाला सिचुएशन, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जब आता है, इंसान कुछ भी करता है, फाइट और फ्लाइट वाला मोमेंट में चला जाता है. वो वहां जाके अब वो झूठ बोलेगा, अब वो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पूरे नहीं बताएगा. मैं दोनों तरीके से एथिकल इश्यू मानता हूं. एक होता है जो गलत बोलता है, एक होता है जो पूरा बताता नहीं है कि आप ऐसा करोगे, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये बैकफायर करेगा, ये आपको, ये दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें क्या होता है, वो बंदा 2 लोग के लाइफ बर्बाद करता है. वो तो सैलरी लेके निकल जाता है एट द एंड ऑफ द मंथ, वो कंपनी का नाम खराब करता है, विच कैन लीड टू अ लॉ सूट. इवन द प्रोडक्ट नेम एज वेल. करेक्ट. दूसरा जो कस्टमर होता है, वो बेचारा ले लिया, अब वो क्या करे. मैं ड्राइवर से मिला था, एक उबर ड्राइवर से मिला था, उसके साथ भी ऐसे किसी ने कुछ तो चिपका दिया, उसको बेचारे को मालूम भी नहीं वो पॉलिसी क्या करता है. मैंने उसको पूछा, बोला साहब हमने ना पॉलिसी खरीदा है. अब वो बोलता है कि हम इतना करेंगे तो इतना देंगे. बोला अच्छा. तो मैंने उसको बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस पूछे, बोलते सर वो तो नहीं पता, उसने बस बोला है ये होगा तो ये होगा. Then when I came to know more about it, this someone has just sold him a random product that he will never use in his life. चिपका दिया है उसको. तो ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलीगल है. It should not happen if you have a product like an insurance that it's fake. Companies should now implement QC against these guys and they should be thrown out as soon as better QC is required. And on the other side, customers should become more aware. कि कस्टमर भी जो खरीद रहा है उसको वो प्रोडक्ट सही है या नहीं, डज इट ऐड वैल्यू या नहीं, ये सारी चीज़ समझ में आना चाहिए. सो अनएथिकल प्रैक्टिसेस, मैं तो देयर आर लाइक 15 वैरायटी ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस. एक तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, इनकरेक्ट हो गया, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन. देन होता है कस्टमर के बारे में, कॉम्पिटिशन के बारे में बुरा बोलना. अभी रिसेंटली मुझे कॉल आता, सर आपके ये कंपनी के इतने नंबर्स हैं, हम ये कंपनी से कॉल कर रहे हैं, आपको पोर्ट कर लेना चाहिए. मैं बोला 1 मिनट, तो मेरे को फोन क्यों कर रहा है, मैं क्यों 5 नंबर पोर्ट करवाऊं इन द फर्स्ट प्लेस. बोलते नहीं सर आपको तो पता है ना वो कंपनी के सेंटर्स ही नहीं है. बोलता है वो कस्टमर सर्विस सेंटर्स ही नहीं है. बोला एंड देन आई वाज लाइक ओ अच्छा कस्टमर सर्विस सेंटर नहीं है. बोला हाँ सर आपको तो पता है उनका कस्टमर सर्विस बहुत खराब है, ये बैठ के किसी और का प्रोडक्ट बेच रहा है, घर पे बैठा है, उसके घर पे सीटी आवाज आ रही है मेरे कुकर की. ये बंदा मेरे को वहां से फोन कर रहा है, मेरे को बोलता है सामने वाले के पास कस्टमर सर्विस सेंटर नहीं है. बोला अच्छा. बोला फिर उनका तो ऐप सपोर्ट बहुत तगड़ा है. बोलता है सर क्या ऐप सपोर्ट, आपने देखा ना उनका ऐप सपोर्ट कैसा है. Now this guy is telling me this, by the way, multi-billion-dollar company का representative talking about other multi-billion-dollar company that they don't have customer service center, which is a lie. It's like a blatant lie. ये कर रहा है sales वाला. And then people think, oh, the world is so unfair with me. Yeah, because you fucked up. Yeah, you messed it up completely. I want to know more of this. मुझे बहुत interesting लग रहा है. Has any sales guy pitched you कि यार ऐसा कर दूँ, लगा क्या बना रहा है तू मेरा यार. हाँ मैं कैसे करता हूँ ना, मैं बताता नहीं हूँ बिकॉज फिर मेरे को मजा नहीं आ रहा ना अगर मैं बता दूं कि तू बेवकूफ बना रहा है मेरे को करके. आई हैड रिसीव्ड एन इंश्योरेंस कॉल. ठीक है, नाउ आई टेल यू दिस इज द मोस्ट एपिक कॉल दैट आई रिसीव्ड. इंश्योरेंस का बंदा मुझे फोन करता है, बोलते हैं ये कंपनी से, अगेन प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन यार, इट वाज सरप्राइजिंग. प्रेस्टिजियस कंपनी से फोन करके बोलता है, बोला सर आपको ये वाला इंश्योरेंस है, ये हाँ टर्म इंश्योरेंस है, इसको खरीदो, इतना ऐसा ब्ला ब्ला ब्ला. हाँ बोला ग्रेट. मैं बोला और बताइए मेरे को इसके बारे में. तो उसने बोला ऐसा है ऐसा है ऐसा है. बोला अच्छा ये ऐसा हुआ तो. बोले सर क्या ले रहे हो आप मेरी. व्हाट, तू मेरे को फोन किया अभी तू मेरे को बोल रहा है कि तू मेरे, मैं जस्ट बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ.
एंड ये बंदे लोग कंपनीज ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो $multi-billion का बिजनेस करते हैं हर साल. ये बंदा सामने से फोन करके जब कस्टमर बोलता है, बाद में मेरे को बंदा बोलता है, हाँ सर आपने दूसरे वाले का ले लिया रहेगा ना प्रोडक्ट, इसके लिए आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो. ये कोल्ड कॉल वाला है डूड. गुस्सा हो गया यार वो. हाँ मतलब अगर तू सामने मिल जाए, सामने वाला भाग के जमाट मारे उसको बंदे को. ऐसा बंदा बात कर रहा है फोन पे बिकॉज ही सिटिंग समवेयर. वो किसी घर पे बैठा है आराम से है, एंड वो तो मालूम है सामने वाला कुछ नहीं कर सकता है. This is how companies, very big brands, I'm not kidding, big brands, like this would be top 3, top 2 organizations in India who are into insurance. Those guys, under their nose this is happening. And आपको पता है इसमें एक और पार्टी है जिसकी गलती है जो ज़्यादा बात नहीं होता है जनरली, और वो पार्टी है मैनेजर्स. ये बेचारे कैसे भी घस वस के करके बन जाते हैं मैनेजर्स. इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आपको बनाया जाता है पीपल मैनेजर कि लोगों को संभालो. आप होते हो ग्रेट सेल्स पर्सन, यू आर नॉट गुड एट मैनेजिंग पीपल, यू आर गुड एट सेलिंग थिंग्स. अभी 10 साल तो घस लिया ना भाई मेरे कंपनी में, तो तेरे को मैनेजर बना देता हूं, चल ऐसा उपकार तेरे पे, ठीक है अब मैंने कर दिया. ये बंदा जिसको मैनेजमेंट स्किल, पीपल मैनेजमेंट स्किल कुछ नहीं मालूम, अब वो हैंडल कर रहा है टीम ऑफ 50. जस्ट इमेजिन, इट इज लाइक गिविंग अ 5-year-old एक्सेस टू 50 buffaloes and expect the 5-year-old to take care of the buffaloes. Buffaloes are gonna listen to them? Impossible. लेकिन वो छोटे बंदे, जो छोटे बच्चे के आपने बहुत बड़ा लट है, उससे बहुत जोर से लगता है. That's the position, the designation they have. And now this kid is trying to control 50 buffaloes मार के, because मुंह से सुनने वाला है नहीं. और ये हो रहा है बहुत बार. खाली रैप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. जब मैनेजर होता है ना, वो मैनेजर्स भी, मैं खुला बोलता हूँ, आई एम नॉट अफ्रेड अबाउट इट बिकॉज आई ट्रेन अ लॉट ऑफ मैनेजर्स. And there are good and there are bad managers. And unfortunately, there are more bad managers than good managers. Yeah. And the ones who are good, they know. This is the reality. And if you're offended by this, you are a bad manager, by the way. It is pretty straightforward. उसमें कैसा होता है, people skill नहीं है, अब वो सिर्फ डंडा मारता है. वो कभी नहीं बोलता कि क्या हो गया रे, नहीं क्यों नहीं बिक रहा है, 1 महीना हो गया, what's happening? मैं बोला सर मेरा डेटाबेस बराबर नहीं है. अच्छा तो रुक, मैं तो दूसरा फ्रेश डेटा देता हूँ. ये नहीं कर रहा है. क्यों नहीं हुआ बे, 9 बज रहे मेरे को भाई, 10 बजे तक 20 कॉन्फर्मेशन चाहिए, तो आना नहीं, शक्ल मत दिखा अपनी. इमेजिन 9 o'clock यू रिसीव अ कॉल लाइक दिस, एंड यहाँ पर माँ बहन की गाली भी पड़ रही है लोगों को. क्या करेगा यार बंदा सेल्स. एक कॉल भी लीक हुई थी, आई हैव सीन दैट. एक कॉल लीक हुई थी जिसमें कोई सेल्स का ही थी, एंड दैट वाज लाइक थ्रैशिंग, मतलब द लैंग्वेज. मतलब मुझे अगर कोई ऐसी कॉल, मैं एक तो पहले ऐसी नौकरी, टॉक्सिक जगह पे नौकरी नहीं करूंगा यार. तुम्हारा माइंड खराब हो जाएगा. करेक्ट. वो उसको धमका रहा है. करेक्ट. कि भाई सुबह अगर तू, शाम तक अगर ये चीज नहीं हो रही, तो सुबह नहीं ऑफिस में दिखियो मत. हाँ, तो इट मीन्स भाई तेरी क्या तुम नींद कैसे आएगी तुम्हें यार. इमेजिन आप वो मैनेजर हो जो ये कर रहे हो, ठीक है, किसी और को लेते हैं यार. हाँ, किसी और, मतलब समझा नहीं. आपने कहा ना आप एक मैनेजर. हाँ, जैसे एग्जांपल, जैसे एनी इंडिविजुअल. बट इमेजिन बीइंग इन दैट पोजीशन, आप सेल्स नहीं अचीव कर पाओगे. मार लो जितना डंडा मारना है आपको. इफ यू थिंक यू आर प्रोफेशनल, आपको अपनी इंडस्ट्री के बारे में बहुत पता है, मारो ना डंडा, मार के करो टारगेट अचीव. सी अल्टीमेटली बॉस, यू विल हैव टू यूज ह्यूमन रिसोर्स टू अचीव टारगेट्स व्हेन टॉकिंग टू अदर ह्यूमंस. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में एग्जेक्ट लेवल पे इतनी ट्रेनिंग होती है, लेकिन मैनेजर लेवल पे बहुत कम ट्रेनिंग होती है, क्योंकि उनको लगता है मैनेजर को ट्रेनिंग की क्या जरूरत है. जबकि कांड वहीं से होता रहता है बहुत बार. अब बताओ, एक सेल्स वाला जिसको है ना, सेल्स वाले का, बाय द वे हम सेल्स वाले का कोई नहीं होता. हाँ, बस हमें अकेले ही है इस दुनिया में. वो खुद मरो स्वर्ग भोगो, ये सिचुएशन होता है सेल्स वाले का. खुद ही मरना है उसको, आग का दरिया है, डूब के जाना है वाला सिचुएशन है. वो हर दिन डूबता है. उसको चाहिए सिर्फ मोटिवेशन, डायरेक्शन और ट्रेनिंग. मोटिवेशन, डायरेक्शन, ट्रेनिंग, कि भाई कर सकता है. देखो अल्टीमेटली क्या होगा, तुम नहीं अचीव करो, तुम घर भेज दूंगा ना मैं. 3 महीना है उसके लिए, 90 दिन हाथ पैर मारते हैं. चलो 90 दिन तू और मैं हाथ पैर मारते हैं. अगर उसके बाद भी नहीं हो पाया, तेरे से नहीं हो पा रहा, गो समवेयर एल्स, मैं खुद साइन करके दे दूंगा. जब तुमको पता है कि दिस इज अ वर्स्ट दैट कैन हैपन, तुमको गाली गलौज करने की क्या जरूरत है. तुमको क्या जरूरत है उसको 9 बजे फोन करके उसको दिन खराब करने की. कहां से होने वाला है तुम्हारा. एज अ मैनेजर यू आर स्टूपिड इफ यू आर कॉलिंग योर ओन पीपल एंड थ्रैशिंग देम. Dude, you wasted 9 hours of that person. 10 people, 90 man hours of your company. You are a damage to the organization. So I feel both the parties, the managerial parties, including the top management, and also the guys who are execs, it is time that we take sales seriously. And we are trying, like हम लोग sales को as an education format में, like sales education format में नहीं है. हाँ, बेचो मैक्स, ये क्वेश्चन था मेरा. बेचो मैक्स एज अ ब्रांड हम लोग वही कर रहे हैं.
we are wanting to get education to people. We are wanting to make people, boss, sales के वजह से fuel आता है कंपनी का, fuel मतलब revenue. और कौन है जो रेवेन्यू मेकिंग पार्ट, ऑफ कोर्स डिलीवरी कर रहे हैं, बट पैसा अंदर लाने वाला सेल्स वाला है. तुम्हारे पास फ्यूल नहीं तो गाड़ी कहाँ चलाओगे? हाउ विल यू एक्सपेरिमेंट विद एक्सपांशन, विद मार्केटिंग, विद रैंडम स्टफ, विद पार्टीज एंड स्टफ इफ यू डोंट हैव सरप्लस मनी? एंड आपको पता है सेल्स एजुकेशन के नाम पे 1.5 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है. उसका तो बोलता है अब तेरा लाइफ चेंज हो गया, एनलाइटमेंट हो चुका है, अब तुम बन जाओगे मास्टर सेल्स पर्सन. कुछ नहीं होने वाला है भाई. You are just going to be another person जो चाय पी के ट्रेनिंग भूल चुका है, अब वो घर पे जाके चिल करेगा, अगले दिन भी वही करेगा. So as a company, after we train, we go back to the company by the way, and I ask people, क्या किया भाई? 45 दिन में क्या किया, 30 दिन में क्या किया, एंड देन उसके बाद 1 महीने बाद फिर से आता हूँ मैं कि अगले बार क्या कर रहे हो. उसके बाद सो वी डू माइक्रो कम्युनिकेशन ऑल्सो कि देखो ये करना है, भूलना नहीं है, करना है, ये भूलना. सो व्हेन वी एंगेज एंड वी आर वेरी स्पेसिफिक, वी डोंट एक्सेप्ट ऑल आवर क्लाइंट्स एज आवर क्लाइंट्स बाय द वे. Oh. मैं आप अपनी कंपनी लेके आओ एंड एज अ बिकॉज आई जनरली डील विद ओनली विद टॉप मैनेजमेंट. अगर मुझे लगे एज अ मैनेजमेंट यू आर नॉट रियली रेडी फॉर द चेंज, आई विल नॉट वर्क विद यू. आई विल टेल यू आई एम सॉरी, यू कांट बी That's माय the best thing. Why मैंने ना काफी, this is the best thing. ये ना मैं बोलना, I stopped you in between for this because लोग कहते हैं यार काम तो नीचे सेल वाले ने करना. मैंने कहा नहीं, it's always top down, it's always top down, it's always top down. क्या विजन कहाँ से आ रहा है? ऊपर से. डायरेक्शन कहाँ आ रहा है? ऊपर से. पैसा वहां से आ रहा है. स्केलिंग का अप्रूवल कहाँ से आ रहा है? ऊपर से. एंड बाय द वे मैंने एक ट्वीट लिखा था बीच में कि कांच की केबिन और मोटी गद्दी पे बैठने वाले अगर फील्ड पे उतरे तो सेल्स डबल होगा. ऐसे लोगों की जल गई ना उसमें. मैं क्या गलत बोला? द फैक्ट इज दिस, इफ यू रियली वांट टू ड्राइव सेल्स एज एन एंटरप्रेन्योर, यू हैव टू बी विद योर पीपल. Of course, don't replace their responsibility. You can't be doing their job. They get paid to do their job. But वो vision, वो direction, वो education एक बार का काम नहीं है, वो consistent है वो. Even when in my own team we have variety of people, I tell them please invest. If you want funding, we'll help you with that. Please invest in studying better in your own skill. तो marketing वाला है, तो content वाला है, तो वो सीख. Sales में भाई कुछ नहीं. So we are trying to get that. We are trying to solve that problem where we're getting education, sales education properly done. Of course, there are dynamics to sales. ये पर्दा बेचने वाला बंदा अलग तरीके सोचेगा, मार्केट अलग होगा. ये वॉलपेपर बेचने वाले का मार्केट अलग होगा, लेकिन फंडामेंटल सेम होता है. मैं चाहता हूं कि हमारा जो टैगलाइन है बेचो मैक्स का, बेचेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया. So when your education is safe, when your education is right, यार मैं तेरे को कौन सा प्रोडक्ट दूं, तू बेचेगा उसको. यू विल एटलीस्ट हैव द राइट अप्रोच. सर्टेनिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी वाला गेम है. हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग, हायर यू सेल. या सेल्स इज नॉट अ सर्टेनिटी गेम. बोलता है इतना टारगेट है, ठीक है, तो उसको 3 गुना एफर्ट डालना पड़ेगा. पाइपलाइन में तब 30% बचेगा, फिर जाके शायद से कंप्लीट होगा हमारा सेल्स टारगेट. तो सेल्स इज अ प्रोबेबिलिटी गेम, नॉट सर्टेनिटी. या सो दैट्स व्हाट वी नीड. We talked about कि ना sales is not as education. कोई डिग्री नहीं है इसकी. ठीक है, हम MBA करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं. We do in marketing. Differ me marketing versus sales. How is it different? Marketing is basically where you tell the people we exist and you bring them to the door. It's about awareness. Yes, that we exist. Okay. And sales guy's job is to ensure that the invoice is printed. कि मैंने मछली मार के लाया हूँ, पकाने का काम सेल्स वाले का है. मछली मारना, दुनिया को बोलना, ये काम मार्केटिंग वाले का है. मार्केटिंग वाला बंदा जो है वो कस्टमर को दरवाजे तक लेके आता है और दरवाजे पे आने के बाद स्वागत सेल्स वाला करता है. सो द वर्ल्ड knows that you exist through the marketing people, and then the sales guy ensures that you print an invoice through them. अमृत, अगर तुम्हें कुछ ऐड करना हो कि जैसे 2 साल की मार्केटिंग होती है, लास्ट के 6 महीने में तुम इंटर्नशिप करते हो, कुछ ऐसा करना चाहोगे कि यार फॉर द सेल्स पीपल हु रियली वांट टू गो इन सेल्स, कि तुम कुछ क्यूरिकुलम में कुछ ऐसा डालना डालना चाहोगे कि इफ अमृत इज changing the style of marketing or style of MBA, if people want to pursue in sales as a career, this should be the last 6 months of it. So I would do 20-80, 20% education, 80% trial. तो मैं 20% आपके साथ बैठ के आपको बेसिक्स सिखाना चाहूँगा, फंडामेंटल सिखाना चाहूँगा, which will form a good foundation, and then remaining 80% मैं आपको फील्ड पे छोड़ दूंगा, where you can possibly do an internship as a sales representative, खुद का धंधा खोल लो, जैसा आपको ठीक लगे. Because कैसा है ना, sales it's a mental tactical sport. You know, everyone has a plan till they get punched in the face. Yeah. Everyone has a plan. I get it now. Sales exactly वही है. You think you are amazing, pick up that phone and call the next person. And you do that again and again, it will humble you.
सेल्स विल हम्बल यू. तू कितना भी शाना रहे ब्रो, सेल्स तेरे को तेरा जगह डेफिनेटली दिखाएगा. एंड दैट्स व्हेन यू बिकम स्ट्रांग. That's when you know what the world wants. That's when you stop doing mistakes and stop getting punched in the face. That's when you become effective. So if I have to put up a curriculum together, it will be 20% learning, 80% implementation. That's the only way to learn sales. Okay. Amrut, तुम्हारा कोई nickname है? It's Amrut. It's quite a unique name. What does it mean? It's the sweet nectar or something. Amrit, of those nectar, lines. Amrit. Yeah. And immortal is generally what it is referred to. Yeah. Fuck. Yeah, crazy. My father is like very creative. It's like, क्या नाम रखते हैं इसका? कुछ Amrit. special रखते हैं. Amrut रखते हैं इसका नाम. Amrut. Yeah, but it's cool. When my team told me, यार, there is a guy जिसको हमने भी approached you. मैंने कहा अमृत नहीं होगा, अमृत होगा. हाँ. He said नहीं अमृत है. तो मैंने कहा हाँ यार अमृत है ना. Yeah. मैंने कहा ठीक है. So you've been a Mumbaikar throughout your life. Yeah. You don't call it Mumbaikar, you call it Mumbai. Bombay, Mumbai, जिसका जैसा मन हो वैसा बुलाते हैं. But generally now it is Mumbai. People call it Mumbai. How does your life turn into sales? मतलब अभी तक हमने जो बात की है, you've given me things which I literally didn't know. काफ़ी चीज़ें मेरे को नहीं पता थी सेल्स को रिलेटिव, और मैं सेल्स को कभी वैसे देखा भी नहीं उस नज़रिए से कि सेल्स एक एसेंशियल पार्ट है तुम्हारे बिजनेस का. विल टॉक अबाउट इट कि जब कैसे इफ़ यूर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप और यूर इनोवेटिंग समथिंग, हाउ सेल्स कम इनटू पिक्चर. बट आई जस्ट वांट टू नो यू एज यू हु यू आर, कि where did this whole journey started कि मैं सेल्स की तरफ जा रहा हूँ, and is it really sales ही था या there have been certain things before which is not in front of the camera भी? Yeah, so when I was almost 18, during my vacation I was playing cricket. And cricket में कैसा है ना, जब आप खेल रहे हो तो आप कभी नहीं चाहते हो कोई आपको बुलाए घर पे कि मैच खत्म उसके पहले. बट ड्यूरिंग वन ऑफ द इवनिंग्स माई मॉम, वी स्टे ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो मेरी मॉम ने ऐसा खिड़की से जाके बोला कि ऊपर आ. एंड जनरली व्हेन यू लुक एट योर मदर, वो एक्सप्रेशन बहुत कुछ बोल देता है कि ऊपर जाने के बाद फटके पड़ने वाले हैं, कि समथिंग गुड इज हैपनिंग, सो वी डोंट नो. सो बट माई मॉम हैड अ वेरी फ्लैट सीरियस फेस, एंड शी लाइक ऊपर आ. And then when I was walking upstairs, I was thinking, यार आज बहुत पढ़ने वाली, because she looked pretty stressed and worried. She opens the door and बोला कि आके बैठ. So मेरे घर पे ना एक सोफा है, अभी भी है वो सोफा. वो सोफा पे जब भी मेरे पेरेंट्स बिठाते मेरे को कि something, या तो you have done some mistake, या तो something important is going to happen. So we sat and my mom told me कि बेटा, Appa has been hit by something called as depression. He will not be able to work anymore. You are the only hope that I have. From now, you are the man of the family. You take care of the earnings, I'll take care of the house. उन्होंने इतना बोला, she got up and she left. And while she was walking out, I asked her, what do you mean by this? She said, you'll figure out. And she left. Now I'm sitting there, an 18-year-old, no clue what to do now. Suddenly that moment I turned from being a boy to a man. And life decided that it's time for me to become a man now, man of the house, to run the family. And so my only option was to actually start earning for the family. And how has been you? Were you like a middle class family guy? Yeah. My parents come from an extremely humble background. ये humble background, humble, सच में humble. Like my father when he came to Bombay, उनका जो shorts था, when he went to college, उनका shorts फटा हुआ था. People would tease him because नहीं थे उनके पास पैसे. वो मेरे parents ऐसे family से आते हैं जहाँ पे आज कितने बार खाना खाने मिलेगा, सो कुछ guarantee नहीं है. They were of that background. But the most amazing thing is they are two amazing personalities. इतना सारा mess होने के बावजूद, इतने humble background से भी, गांव से बॉम्बे, so we are from this beautiful place called Gokarna, गांव से बॉम्बे आके खुद का एक जगह establish करके, they took care of themselves, they grew 2 children, and it is a phenomenal thing. So I come from a nice background. When I say nice, I mean a very strong upbringing. Paisa unfortunately left us when I was around 18, and we had a very difficult time. तभी मैंने डिसाइड किया कि यार काम तो करना पड़ेगा, मतलब जॉब, पैसा मतलब तब तुम स्कूल में थे? तब मैं कॉलेज में था. 18 साल, ठीक है. सो वेकेशन में जब लोग जैसा मैं क्रिकेट खेल के ऊपर आ रहा था, माई लाइफ चेंज्ड. That was, I think, at that moment, that was the last time I was ever gonna play cricket during vacation, because from now it had become कि घर पे पैसा कैसे लेके आए. तो मुझे पता चला कि रेज्यूमे प्रिंट करना होता है. रेज्यूमे क्या है पता नहीं है, तो मैं तभी बायोडाटा बोलता था. कुछ आइडिया नहीं यार, तू बच्चा है कॉलेज का. देन my first job was of a टेलीकॉलर, सेल्स में काम करता था. एंड किसी के एक अंकल थे, वॉज काइंड इनफ, उनके पहचान के थ्रू मुझे जॉब मिल गया. 3 महीना मैंने वहाँ पे आई वर्कड एज अ टेलीकॉलर. जो लोग मेरे आजू बाजू काम करते थे, वी यूज्ड टू सेल ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स.
अच्छा जो आज जो पहले जमाने में सीडी में जुगाड़ होता था ना, हाँ हम ओरिजिनल बेचा करते थे और हमारे बिल्डिंग के नीचे झोल वाला बंदा बेचा करता था 10% ऑफ द कॉस्ट. सो मैं लोगों को फोन करके हाय आई एम कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो सॉल्यूशंस वुड यू बी इंटरेस्टेड टू बाय. तो कुछ ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं, बस मतलब. एंड मैं जो मेरे आजू बाजू बैठते थे उनके बच्चे मेरे एज के थे. सो आई वाज देयर. लाइफ जस्ट पुट मी आउट देयर एंड से यू नो व्हाट, या इट स्टार्ट्स नाउ डूड, ऑन योर मार्क गेट सेट गो. नो MBA, you're not waiting for graduation to happen, nothing. फटी हाँ मतलब see the thing is this, after you get punched too many times you become immune to it. You really then start comprehending कि punch feel कैसे होता है. It's like a boxer, right? They are not surprised anymore. why I'm saying this is अगर ये कोई लड़की का होता ना सीन, मैं यहाँ पे जेंडर स्पेशली इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. अच्छा. जब लड़की का कोई सीन होता ना तो दे आर वेरी ओपन टू एक्सप्रेशंस. men are not. Yeah, because we are not allowed to express, boss. Because if you, unfortunately, if you express, you are weak. Yes, मैं Yeah. वही कह रहा हूँ क्योंकि आपकी मम ने आप पे देखा. Correct. And if you would have like dropped a tear, नहीं होगा मुझसे. Yeah, it would have been a disastrous moment. Yeah. Now, because Abhi, she would have possibly sat and said, okay, you know what, okay, we'll figure out together. She's a very strong lady, by the way. Phenomenal lady. But कैसा है ना, see, as a man, by default, you are trained. And it is essential. मेरे को लगता है as men, of course, we should express. Don't mess yourself up. Find the right person to express your stuff. Yes. To. Don't express your stuff to everybody else. People will kill your life. They'll make your life Yes, difficult. yes. Please don't share your thoughts with everybody. Yeah, as a man especially, have good friends who you can trust. So of course, but कैसा है ना, मेरे साथ एक बहुत अच्छा चीज़ हुआ. So my father, even though he knew that okay, from a technical standpoint, he can't have a job as such because psychologically, when you go through a depression, it's very difficult. वो movies में बहुत बाहर से बहुत cool लगता है, but when actually there's a person at home going through it ना भाई, तब समझ में आता है कि डिप्रेशन कितना खतरनाक चीज होता है. इट messes you up. You have no idea how powerful it is. It is more powerful than a lot of physical issues that people have because you don't know what you're doing. Yeah, you're in a silo and you have this guilt. Like my father, he's 70 now. He still has that guilt at this age. इतना साल हो गया, and he lives with that guilt as a man because he's a nice guy. He wanted to do good for his family. He wanted to grow. He had a lot of aspirations. He wanted to do good for his kids and wife. But then he always still did. इतना साल हो गया उनको. I don't know how many years now. He still feels bad about it. So that's we are supposed to protect and provide. That's our job. Mother Nature has assigned that job to us, and I'm completely fine with doing that. बट कैसा होता है कि देखो फटी वो एक्सप्रेशन एक मोमेंट वो फीलिंग एक बार आता है, बट देन यू टू कम ओवरकम दैट. Yes. सी बिकॉज इट्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बॉस. बाहर द वर्ल्ड इज नॉट बीइंग नाइस टू यू. द वर्ल्ड वांट्स टू एंश्योर यू फेल एंड ओनली द बेस्ट विल सर्वाइव. उसके बाद क्या हुआ कि दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहा कि इतना पैसा कमाना है ना. वो एक स्विच हुआ कि बॉस इतना पैसा कमाना है ना कि फिर से मेरे को प्राइस टैग नहीं देखना पड़े. Like my father, when he was doing well, he lived a beautiful life. He gave us a good upbringing, good food, good shelter. And so my thing was like, I want to become like my father. I want to become as strong as he was. But I want to do it the right way. And from the beginning, I knew कि job मेरे लिए बनानी है, लेकिन job करना पड़ेगा bills भरने के लिए. So then it started. I'm a comp science guy. I'm a comp science topper who never went into coding, by the way. I always wanted to do something in the lines of communication. I did not even know. कोई mentor नहीं, कुछ नहीं है. कोई mentor नहीं. My dad. So the best thing that happened was my dad gave all his experiences to me, sitting on the same sofa, and he prepared me for the world outside. So when I went out, when my friends were still in MBA and they were trying to figure out life कि आगे क्या होगा, I had already seen the world. I had already known good 30-40 years of download of what's going to happen outside, and I was prepared. So it was like I had my own private ring at home, and I was practicing for the boxing match every day when I came back. My father and I, we still have these conversations. You know, I urge to all the fathers who are watching this, अपने बच्चों के साथ बैठो, पूछो क्या किया आज बॉस, कैसा था तेरा लाइफ, तू क्या किया आज. बहुत सारे पेरेंट्स बात ही नहीं करते बच्चों से. 10 मिनट लगता है, बट यू कैन हेल्प योर किड विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. सो मेरे साथ वो एक बोलते हैं ना कि इट्स अ बून at exactly the right time. So I got all the experiences. When I went out there, I was not just another 21-22-year-old. I was like a person who's 21-year-old with but good 40 years of experience in his head, because practically you have to play this well. तो मैंने जॉब लिया, एंड कॉलेज में दे हैव दिस कैंपस सिलेक्शन टाइम पास, राइट.
तो उसमें ना उसमें मुझे कुछ 200-250 लोग थे, इसमें से आई वाज वन ऑफ द ओनली वंस हु गॉट सिलेक्टेड, एंड आई गॉट सिलेक्टेड बाय कॉल सेंटर, वेरी पॉपुलर, वेरी बिग ब्रांड कॉल सेंटर, एंड 7 दिन में दे फायर्ड मी, 7 days they fired me, they told me you're not good with communication. I was like, that was the only thing you hired me for, and now you're asking me to leave. So life was just punching me down. It was just punching me. We laugh about it now. Just a 21-year-old, completely clueless what to do next. But एक था, जितने बार गिरेगा उठ के खड़े होने का, फिर से कुछ करने का, गिरा फिर से कुछ ट्राई करने का, आगे बढ़ने का. That is the only way of life. बैंड बजी, एक्सेप्ट करने का, बज गया, वाट लग गई, ग्रेट, अभी उठने का, कुछ और करने का. My father had told me that because I remember my mother, right? She's like, yeah, okay, great, you failed, fantastic, move, next. What's next? So I did that. Then I after like those 7-8 days, whatever I spent with the first company, they trained me well with voice and accent. तो मेरा वॉइस एंड एक्सेंट का ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त. इट वाज अ बीपीओ, वी वर इन कस्टमर सर्विस. तो 7 की 9 दिन का कुछ था उनका, एंड दोस 9 days I learned a lot about how to speak well, right? And I was completely in disagreement with them कि it was my communication issues. बाद में मुझे पता चला कि they were basically downsizing the process. That was the only thing, nothing else. But उनको कुछ तो बोलना था ना, तो they just had to come up with some reason. Then I went to another place, better call center. Then I had the opportunity of working with American Express. So I worked with a company called FIS, and then वहाँ पे Amex का process था. Let me tell you, Amex का जो customer service is so premium. You know why? Because it is impossible to be there. If you are there, if you are one of the agents, boss, you are really good with your stuff. Like they expect 9 out of 10 stuff, 9.5. वो लोग 80% वाले नहीं है, वो लोग 100, 110 के सोच रहे हैं. Amex as a brand is very different in the back end. The ethics they have, the kind of skills they expect from you is phenomenal. I luckily got selected for that. I was placed in Amex. I went through the same training, better engagement, and I was placed in Amex. And there I grew tremendously well. So मैंने 4.5 साल वहाँ पर काम किया as an agent, and then I worked into quality management. So technically I'm an auditor for ISO 9001 and a Six Sigma Green Belt. So वहाँ पे I used to manage quality for them. Then after 4.5 years, then I went to a French MNC, ISO certification body, because I'm an auditor as well. There I got into marketing and sales. तो वहाँ पर मैंने कुछ 4 साल काम किया. So overall I worked for 8.5 years. लेकिन ये 8.5 साल जब मैं काम कर रहा था, all my weekends, SL, CL, PL, जितने भी छुट्टी हैं, ये सब मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता. So I have tried about 31 different skills. I have the list. You have the list? Yeah, you want to read out? मैं लेकिन उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा. Amex people are so fucking good. They're amazing. मेरे को ना आई एम नॉट यूजिंग Amex कार्ड, ठीक है. मैंने मेरे को एक मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया, एक मेरे पास पर्सनल कार्ड था, ठीक है. और मैंने कहा मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बाहर जाना ज़्यादा होता था कि मैं यूएस ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वहाँ पे चार्जेस कम लगते थे. तो मैंने इसलिए Amex लिया हुआ था. तो मैंने कहा यार 2020 के बाद कम हो गया थोड़ा जाना. पीपल रियलाइज कि यार घर से काम हो सकता है. मैंने कहा इसको बंद कर दो क्योंकि एनुअल फीस इज 4,500-5,000 रुपीज़. तो दैट लेडी कन्विंस्ड मी सो बैड कि मैं उसको आज तक नहीं बंद करा पाया हूँ. इट्स बीन 5 years now. See, customer service का टॉप नॉच. और तुम मुझे कहोगे डिड शी चीट मी? मैं कहूंगा नहीं. Because she was so beautiful. See, the thing with in Amex is this: if you ever get a chance to work, everyone, if you ever get a chance to work with any Amex process, take up the job, be with them for a couple of years, they will change your personality. वहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जाती थी, like when a customer calls you, you need to be there as a friend, be there with them. You can't be artificial, by the way. उनके जो क्वालिटी पैरामीटर्स थे ना, इतना लंबा शीट हुआ करता था, मैं इवैल्यूएट करता था कॉल्स लोगों के. If you get evaluated on a Amex, I don't know what it is right now, but Amex quality sheet on a customer service call, and if you score about 85-90%, मैं ताली बजाएगा bro तेरे लिए. Because you know how to communicate, and to get 100 on 100 on those calls, my god, you had to be a specialist. You had to really know what you're doing, what you're saying. Because कैसा था, the responsibility we had, one mess and there was a lawsuit in the US, right? We used to get calls from the US and from different countries. So the kind of responsibility we had was phenomenal, and we were made aware of the responsibilities we had. So कैसा है ना कि बहुत सारे लोग आते लेकिन बचते बहुत कम थे. So I was lucky, and that put my confidence back that I can actually communicate, because I was just sacked a couple of days ago कि भाई तेरे को बात करने नहीं आता, भाग इधर से. And then they're like, no dude, I think we are good. If you, and by the way, their evaluation system, they don't assure you right away. They will train you, then like वो evaluation अगर तू pass कर गया, then you have actually earned that place. And if you see anyone who has, like even my friends who are from Amex now, look at the way they speak, look at the way we communicate. I'm so proud I got to work with the brand, क्योंकि मेरा customer service का जो मेरा mindset है ना, और मेरा communication का भी to use, especially telephonic conversation का, it comes a lot from Amex experience.
Because there you constantly know you have to score 100. Yeah. तो 2-3 महीना मत कर परफॉर्म, तेरे घर भेज देंगे लोग. Because they didn't want under performers, they wanted the best, because they think like that for the customers. कि मेरा कस्टमर जो वहाँ कार्ड यूज कर रहा है उसको ये कस्टमर सर्विस डिजर्व करता है मेरा कस्टमर. इसके लिए एकदम सीना ठोक के बोलते हैं वी आर Amex. मैं जो बोल रहा था ना टॉप डाउन अप्रोच, विजन फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, देखते हैं हम लोग. द डायरेक्टर्स यूज्ड टू फ्लाई डाउन to India just to talk to us. हम लोग एजेंट्स हैं भाई, एग्जेक्ट्स बैठा करते थे, बट नहीं, just to fly down all the way, spend time with us, understand what's happening. वो कांच के केबिन में मोटी गद्दी उतर के नीचे आते थे वहाँ से फ्लाई करके. That's the kind of leadership you need. And of course, we are customer service, we are not sales. But I'm pretty sure उनका sales का process भी उठा के देखोगे ना, वो लोग वैसे ही होंगे. They will be sharp, they will be good. So you're talking about the skills, right? Yes. I have 31 skills if I'm not wrong. If you can please. Yeah, I'll not call this skills, bro. You have a fucking huge list. Yeah, but real ठीक skill है stacker. भाई, तुमने लिखा हुआ है, ठीक है. Number one, selling. I agree with you on this. ठीक है. There is this called negotiation skills. Yeah. You're good at it. Yeah, I'm very good at it. I vouch for public speaking. Team building, yes. You told me you're Six Sigma system management. You're Six Sigma certified. Auditing, data analysis, digital marketing, Insta, content creation, content writing, scripting. Yeah. Presenting skills. Acha, you into video editing as well? Yeah. अब मेरा प्रीमियर प्रो पे हाथ बहुत अच्छा है, बिकॉज इनिशियली जब पैसे नहीं थे तो एडिटिंग मैं खुद करता था. सब स्टार्ट ऐसे करते हाँ, हैं. तो किसके हाथ होते हैं पैसे? Bro, every YouTuber I think has done. आजकल तो Instagram ने 30 सेकंड बकवास कर दिया, बट सबने वीडियो एडिटिंग तो जिसने YouTube पे बहुत पुराने वीडियो डाले हैं तो of course, like the other business which I run, which is into employee engagement and music, editing मैंने किया है. If you look at the old videos, अभी तो खैर टीम है by God's grace, but हाँ, प्रीमियर प्रो पे हाथ अच्छा है मेरा. Music editing? Yeah. You mean like this proper music to compose, to edit? Okay. Voiceover, storytelling, book writing. You were talking something about the book as well. Yeah, so I'm gonna launch. I think this is the first time the world will come to know. So I'm publishing a book called Entrepreneur. We got it registered recently. So I realized that India needs more entrepreneurs, but education towards entrepreneurship is very expensive, and mentorship is almost impossible to access. We are crores of people, and there are crores of dreams. So I will make education, top-notch entrepreneurial education, accessible to people through a book. It is going to be their 24/7 mentor. So it's going to be called as Entrepreneur. The word entre means to get into something, and punter means someone who takes risk. So because it's a world of risks, so that's going to be the book. It's going to be out soon. Entrepreneur. Yeah. That's good. That's a nice name, yeah. Yeah, thank you. That's a very kind of a different name, huh? Okay, you rapping? Yeah. You will find 6 of my songs. So it was just an experiment because we run team building business as well on the other side. I wanted to get rapping as a team building activity for my corporate clients. मैंने बोला अगर मुझे किसी और को बोलना है कि रैप करके दिखा, टीम को बोलना, खुद को तो आना चाहिए. सो आई लिटरली वेंट थ्रू द एंटायर प्रोसेस ऑफ लर्निंग हाउ टू राइट रैप, टू अंडरस्टैंड द कल्चर, राइम कैसे करना है, डबल एंटोंडर कैसे करना है, एंड देन आई हैव एक्चुअली पब्लिश 6 सॉन्ग्स. मेरे यूट्यूब चैनल पे है अभी भी, और उसमें एंटरप्रेन्योर करके भी एक सॉन्ग है, विच इज़ रियली फन. यू शुड वॉच इट. या Bro, you tried almost everything. You've been like singing, stand-up comedy. Yep. Stand-up comedy. So bad. My stand-up comedy was a joke. It was a big joke. मैं ओपन माइक में गया था stand-up comedy के. मुझे लगा मैं कर सकता, क्योंकि मैं तुम 4 दोस्तों में तो सबसे कांडी तुम ही होते हो. हाँ. तो मैंने कहा यार मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को. तो मैं stand-up comedy गया, और it's like you bring one person with you. stand-up comedy ओपन माइक का सीन ये होता है. समझ गया. तो मुझे किसी ने स्पॉट दिया, यार भाई मुझे ऐसा लग रहा है कोई जान के नहीं हंस रहे वो. अगर गलती से if you go to a stand-up like an open mic where there are only comedians, you're not getting any laugh. Yes. Because they hate you. They think they have better jokes. If you go with a regular audience, they might. They might. Like, I can't guarantee, but they might. Yeah. I tried that. I've opened for a couple of comedians as well. I failed so miserably, but I use that skill now. I use it for writing good posts, good tweets on my Insta page, and it works. Yeah, I use the same skill, right? So it works. Okay. When you say magic and mentalism, yeah, have you tried mentalism? Yeah, I tried during pandemic. So during pandemic, right, the whole world shut. मेरा जो core business था वो बंद पड़ गया, and I had to come up with new skills. So I learned various skills during pandemic, and magic was one of them. I've been a magic enthusiast for a very long time. So basically, reading your mind, guessing your password, so forth and so on.
So I used to do magic for people because मुझे पता था जो मेरा जो core business है वो consume करने वाला नहीं है because employee engagement के लिए लोगों को आना जरूरी है. Pandemic shut everything down. So I had to get skills. That's why my skill stacking ability. So I have a proper approach to learning a skill fast and implementing it and trying to sell it to the world. So I learned mentalism there. So मैंने almost 2 साल during the pandemic I think I would have. Are you successful in it? Yeah, I was good at it. I stopped it because वो ROI was very bad as an entrepreneur. I was not making great with show. Like I was doing better with my business, and but yeah, I'm not in touch anymore because I left it completely. And it's a fantastic skill. I think I will come back. Can we try something? Yeah, we can. Do you have a deck of cards by any chance? I can show you some deck of I don't magic know. trick stuff. No, Yeah. not the mental stuff. and Mental all. stuff. Yeah, we can try. But I'm off practice right now, so I might be wrong. But that's completely okay. We'll cut it out then. Uh, और फिर उसके बाद हम Let's सही do it. आंसर देके Let's do it a little later. No, I don't हाँ want ठीक to है, fake we'll do it after this. हाँ, why not? But I wanted to meet someone यार who does this कि वो Yeah, मेरा yeah. दिमाग पढ़े. Yeah. I want someone to be in my shoes Oh, कि उसको लगे यार अरे See, I see that as an entertainment. हाँ Or people get really scared. I was at a wedding. I guess someone's Paytm pin, and that guy was very scared. And I had asked him. I said, "Don't make me do this." He's like, "Do you want me to do it?" I asked him. He's like, "Yeah, of course. Ab kya kar loge?" And then I guessed it. He's like, "Dude, I hate you." And he left the venue. He was like, I don't know. change all my pins. Yeah, I don't. Yeah, it's fun. I use it for entertainment. So I learned mentalism just for fun to engage people. तभी online shows होते थे. So during pandemic, I had to re-establish myself as an entrepreneur, re-establish the whole business. While we're doing negotiation skills, sales ka stuff and all, I had to come up with engagement and entertainment. So that was one of them. And there are 31 things you have written. Yeah. Playing with Djembe. Djembe, yeah. Djembe, D Yeah. silent, okay. Djembe, the one video you showed me. Yeah. So on the that's other side, I'm India's leading drum circle facilitator. Drum circle is basically where you get people together and you make music together. So we do that for corporates. And I've done Wankhede Stadium, I've done NSC at Dome. I hold 2 world records as well. So I'm big in that world. Yeah. And does it give you money? Of course. We make good revenue out of it. We make phenomenal revenue out of it. I think I'm not No, going I to thought shy. you're doing it for the passion. No. It started with passion, of course. I started it on the streets of Mumbai. I would gather people randomly over the weekends. So मैं बोला ना कि SL, CL, PL. So weekends मेरे सब इसके लिए जाते. So I would experiment with all these skills, अलग-अलग skill कि जो भी बस लोग खरीदें. So I would get people together, make music, and I realized I'm in love with this entire art form of getting people together. And then I was part of the How community. does this happen कि तुम कि busy Sunday हाँ. या weekend Sunday हाँ. you're on a say anywhere Mumbai का let's say Gateway of India. हाँ. So you So it go doesn't there. happen at Gateway, of course, because it's a very private and secure property. So there are different places like on the shore, Bandra mein Kato Road karke hai. So it's an open place, open for all. It's like one of the gardens, right? So it's a shore, small belt there. So you would just call people, tell them कि इतने बजे आ जाना, एक instrument लेके आना, and then you start playing one rhythm and everyone just joins in and has a good time. The best thing is you don't need any background of music. Everyone can be part of a drum circle. Corporate में कैसा है कि we have it in a very structured way. जहाँ पर मैं एक performance के बाद, एक high energy performance के बाद एक motivational talk करता हूँ या फिर debrief करता हूँ, वहाँ पे काफी structured होता है. Community jam is just come together and jam. It's just fun. It's crazy, man. Because see, there is no judgment. Everyone is playing wrong. But then I realized that I could actually convert this to a profession. मुझे लग गया कुछ साल to convert it to a revenue making system. I used to initially do these बच्चों birthday parties जहाँ 5-6 छोटे बच्चे होते थे उनके terrace पे बैठ के I would get 6 drums for them and then we play along and I would do birthday parties. That's how it started. Shit, man, you I struggled a lot, man. Oh yeah, man, I slogged my ass like crazy. But I like it. I'm so happy I slogged, or else life would have been really boring. So yeah, I would do that, and I thank all the ladies in the Sai and Dadar area of Mumbai. They would recommend my work to. There were ladies group, right? अरे मेरे बच्चे के birthday party में आया था, तुम लोग भी कराओ, and they would recommend. And then the husbands of these amazing ladies, they would be like, ये तो corporate में करता है, work for this company, आके क्यों नहीं करता हमारे canteen में आजा. And from there it started. And then we have done some remarkable stuff. We represent India. I have set 2 world records, one for the largest djembe drum circle. Then the second one is the largest drum circle of the blind, of the visually impaired. So we have done that. And there I'm like a mogul there. Like it's one side. We are crazy there, drum circles. Amrut, that has been a fantastic journey. But मैंने ना एक चीज़ देखा कि I have been a failed entrepreneur myself. मैंने कुछ start किया था मतलब 2018-19 में. That didn't work. Then I had to shut it out. And I keep trying. कुछ कभी यहाँ कर लिया, कभी कुछ कर लिया. But मेरे को उससे एक चीज़ मिला कि यार मैंने ना product तो सोच लिया, मैंने उसका sale नहीं सोचा. How do you feel
or how do you view this, the whole blueprint ki where does sale put in, कि जब तुम बिल्कुल स्क्रैच से सोच रहे हो कि इंसेप्शन पे आइडिया को कि यार ये प्रोडक्ट बनेगा या फिर ये सर्विस बनेगी और ये ऐसे डिलीवर होगी, तो उसका सेल कब आता है सोचने के लिए वो पूरे तुम्हारे सर्कल में? कॉल इट अ बेल कर्व. या सी मेजरली लोग जो पैशन ड्रिवन होते हैं ना, वो सेल का सोचते नहीं है. ट्रू. वो पैशन का सोचते हैं. So if you are very passionate about something and that something is not interesting for the world outside or they're not buying it, then आपका passion बस passion रह जाएगा. In one of my songs I've mentioned कि passion भरेगा दिल, bill नहीं भरेगा. So it will pay, you will feel nice, but it is not going to help you pay bills. So I would recommend, first of all, stop reinventing the wheel. Do something relevant that the world is already consuming. बिकॉज कैसा है ना, एक नया आइडिया को लाने में और उसको बाद में एक कॉन्सेप्चुअल आइडिया को क्रिएट करने में, उसके बाद उसको दुनिया को दिखा के उसका एक्सेप्टेंस लेने में और फिर उसको जाके बेचने में और शायद जाके प्रॉफिट करने में, बिकॉज मैं प्रॉफिट के लिए बिजनेस करता हूँ. ठीक है, उसको वो जो कर्व, ये पूरा जो लंबा जर्नी है ना, ये बहुत पेनफुल है एंड इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, बिकॉज नॉट एवरी बिजनेस इज सक्सेसफुल. वन, डू समथिंग दैट यू रियली लाइक, you would enjoy, because it's not dating, you're getting married to that person or that business, right? So one idea. Secondly, you will have try to do something which the world is already doing, do it better, okay, more effectively. कि because कैसा है ना, अभी 100 लोग सेम चीज कर रहे हैं, तू अलग कैसा है, इसका जवाब बहुत एविडेंटली कस्टमर की तरफ से आना चाहिए. तो दैट मीन्स यूर थिंकिंग अबाउट सेल्स ऑलरेडी. आप सेल्स ओरिएंटेड ही अप्रोच रखो कि ये बिकेगा, मुझे पता है लोग खरीद रहे हैं. तो जब आप मार्केट रिसर्च करते हो, आप कंजम्पशन के बारे में भी सोचते हो कि सामने वाला खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है. सो थिंक अबाउट दैट. लेट सेल्स बी द फर्स्ट आइडिया. ओके, ऑफकोर्स यू हैव टू डू समथिंग विच हैज टू मैच विथ वॉट यू लाइक. तो पसंद आना चाहिए आपको, वो बिकना चाहिए. एंड थर्ड, यू हैव टू बी रियली अग्रेसिव टू टेस्ट इट एंड टू फेल क्विकली. अगर आप फास्ट फेल नहीं हो रहे हो ना, देन इफ इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, यू कांट बाय बैक टाइम. सो यू वांट टू पुट द प्रोडक्ट आउट देयर. एक्सपेरिमेंट चल रहा है, नहीं चल रहा है, फुल क्लैरिटी होनी चाहिए. 3 महीने में आपको पता चलना चाहिए, 6 महीने में आपको पता चलना चाहिए कि धंधा मुझे करना है कि नहीं करना है. क्योंकि बहुत लोग क्या उस चक्कर में डूब जाते हैं. एंड पैशन जो है ना, आपको सिर्फ कस्टमर की तरफ रखना चाहिए. दैट इज द ओनली थिंग. पैशन जो है वो कस्टमर को हेल्प करने में, कि आपका प्रोडक्ट क्या कर रहा है. पैशन आप पैसे की तरफ रखोगे ना, यू विल हैव अ वेरी टफ टाइम रनिंग बिजनेस, क्योंकि आप सिर्फ पैसे का सोच रहे हो. यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द अदर साइड. यू रन अ बिजनेस बिकॉज द अदर साइड इज बाइंग इट. So I think this would be the basic, the most core fundamental. Don't reinvent. Think about the customer. Do something that people are not doing already. And if you want to chop people off who are already there in the system, if you want to beat them, observe everyone's gaps and issues and ensure that you offer the solution to those issues. अभी ये जो ड्रम सर्कल का बिजनेस मैं जो बोलता हूँ, द रीजन आई बिकेम सो बिग इन दैट बिजनेस, बिकॉज मैं जब तैयारी कर रहा था, जहाँ पर रास्तों पे बर्थडे पार्टी सब कर रहा था, देन आई वाज ऑब्जर्विंग द बिगीज इन द सिस्टम. सो once you have this clarity that you know that this is selling, you don't have to reinvent the wheel, then you will have slightly higher probability of success. Because kaisa hai na, you want to meet success at some point of time to keep yourself motivated. So you would want to do something which you know will work in the first place. Now I'm someone who's passionate about things, but I always have my passion towards the customer's experience. तो लोग क्या सोचते हैं कि यार अगर मैं पैसा, अगर तू पूरे का पूरा फोकस पैसा बनाने पे डाल देगा, then you might miss out on customer service, because you're creating a service for someone. How will that someone feel? This would be an ideal way to go ahead with it. Of course, entrepreneurship सबके लिए है, सब लोग अपना अपना करे, जिसको जो करना है करे. लेकिन अगर आपको सच में पैसा बनाना है, you want to really grow, you would want to do something that is working in the first place. इसका मतलब ये नहीं कि आप innovation मत करो, but याद रखो, innovation सस्ता नहीं होता. Innovation is very expensive. It's a lot of R&D. Yeah, and people use the word innovation very lightly. Try innovating. Try inventing the next wheel. All the best to you. Yeah, wheel. कार पे लगता है ना? Yeah, invent the next wheel. Give it a shot. So difficult to come up with something new. That doesn't mean you don't come up with something new. If you want to do it, all the best. You have got the money, got the time, do it. But majority of us, अपने पास ना पैसा है, ना direction है, ना mentorship है. तो ये simple formula follow करो and you'll be good. Do what you like. Don't try to reinvent the wheel. Just try to do it better than the others. Tell the world that you exist and try to sell it. Would you recommend anyone to have a job in 2025 rather than just starting something of their own? Yeah, I have a job and do something side by side. I'll tell you why. Like if your business fails, तू बिक मांगेगा. बट एक कहते हैं ना यार,
तुम दो नाव में सवार नहीं हो सकते यार. You have to give it to your business. अगर तुम एक entrepreneur बन गए हो तो you just give it yourself through it. तो would you advise anyone कि पहले थोड़ा टाइम जॉब करके एक्सपीरियंस ले लो and then jump into entrepreneurship या फिर साइड हसल करो? साइड हसल करो. Okay. अगर आप बट इफ यू आर वेरी, मेरा बहुत सिंपल है. देखियो, यू व्हेन यू लिव यू कंज्यूम, दैट मीन्स खर्चा करने के लिए आपको पैसा चाहिए. अभी सबका इकोनॉमिकल स्टेटस कैसा है वो मुझे खैर पता नहीं, बट मेजॉरिटी ऑफ सिचुएशंस यू हैव टू पे योर बिल, राइट? सो आई वुड सजेस्ट, मैंने भी वही किया, राइट? मैंने भी 8.5 साल जॉब किया एंड वो बड़े बड़े कंपनीज में काम करते करते उनके सिस्टम सीखे, एक अच्छा नेटवर्क बनाया, वहाँ पे मुझे लोग समझे, मैनेजमेंट समझा. तो वो लर्निंग्स लेके जब मैं इस तरफ आया तो मेरा धंधा काफी रोबस्ट बना. मैं भी काफी सारे बिजनेस में फेल हुआ. आई टू डू डेटा एनालिसिस, वहाँ पर आई फेल्ड मिजरेबली. मेंटलिज्म आई फेल्ड मिजरेबली. आई फेल्ड सो मेनी टाइम्स, लाइक 31 स्किल्स, उसमें से मैं भी 5-6 यूज करता हूँ. द रिमेनिंग आई फेल्ड, राइट? आई एम अ बिग फेलियर स्टोरी, बट आई एम हाईली सक्सेसफुल इन बोथ माई बिजनेसेस. एम्प्लॉय एंगेजमेंट हो या बेचो मैक्स हो जो सेल्स का है. तो आई वुड सजेस्ट कि आपका जो फ्री टाइम है, बिकॉज देखो धंधा ना एक साथ भम करके बड़ा नहीं होता, वो स्लोली ग्रो होता है. आपको कैसे मालूम पड़ेगा आपकी असली औकात क्या है, कि आप कितना सक्सेसफुल हो? जब आपके वीकेंड्स और सारी छुट्टियां इतनी भर जाएंगी, आपके पास समय नहीं होगा अपने जॉब को देने के लिए, तब आप ट्रांजिशन कर सकते हो. अगर पापा के पास बहुत पैसा है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लाइफ भर एक्सपेरिमेंट करो ना, क्या फर्क है? लेकिन सबके पापा, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है. तो इफ यू आर इन दैट पोजिशन, अपने वीकेंड्स को वेस्ट मत करो. वीकेंड्स पे ऐसे चीजें सीखो जिससे आप अपने धंधे को अच्छा कर सकते हो, and use that as a better, that's a better approach. And support people like that. Yeah, like I am happy, like मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं वीकेंड में पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो support my fucking podcast guys. Yeah, do that. and by the way, it's a safe way too. Yes. क्योंकि कैसा है ना, मैं भी 8.5 साल तक यही सोचता रहा कि भाई पाइपलाइन कैसा है, पाइपलाइन कैसा है. Before I jumped February 2019, मेरे पास अच्छा खासा 3 से 6 महीने का पाइपलाइन रेडी था. हाँ, कि भाई 6 महीना तो प्रॉब्लम नहीं. एंड दूसरा यार, एवरीवन प्लीज स्टार्ट सेविंग मनी. यार तुम एकदम फॉर सम टाइम, ओके, नॉट योर एंटायर लाइफ, फॉर सम टाइम स्पेंड लेस ऑन दारू, स्पेंड लेस ऑन पार्टी, स्पेंड लेस ऑन फैशन. Just keep that money with yourself. Give me your state of mind on this. If a person earns 50,000 rupees a month, कितना % सेव करना चाहिए? Just give me the number. I will give you the other way. अच्छा ठीक है. 50,000 कमाते हो, 10% अय्याशी के लिए है, बाकी जो आपका नेसेसिटीज है वो पूरा करने के लिए, जो बाकी जो बचता है पूरा रखो या इन्वेस्ट करो, ये तुम्हारा है. बट जो मेजर प्रॉब्लम कहाँ होता है, खर्चे पे. जो खर्चा अय्याशी करना, सिर्फ 10% इज व्हाट यू शुड डू. इवन टुडे रनिंग सच अ सक्सेसफुल बिजनेस, आई स्टिल स्पेंड ओनली 10% इन अय्याशी. बाकी सब या तो धंधे के लिए लगाओ, या तो सेव करो, या तो इन्वेस्ट करो. सो लोग तो हार्श, लाइक दे रेकमेंड टू डू 50%. If you can save 50%, which is very difficult, that is phenomenal for you if you can. But आपको कंट्रोल करना है आपका अय्याशी का अमाउंट. दूसरी चीज, EMI मत लो. अगर कोई चीज आपकी औकात के बाहर है, there is a reason कि वो आपके औकात के बाहर है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है. So if someone convinces you, आप ब्रो EMI पे ले ले, फिर आराम आराम से दे, क्यों? रखना पैसे अपने पास, ग्रो करना. मुंह पे पैसा मार के खरीदने का मेंटालिटी रखो ना, कि कमाऊंगा मुंह पे मारूंगा पैसे, ऐसे लेके आऊंगा जाके. दिक्कत क्या होता है ना, जब आप इनिशियली बड़े लोन्स ले लेते हो, लोन लेते हो, आपको जो स्किल सीखना है, आपको जो धंधा एस्टेब्लिश करना है, उसमें जो खर्चा होने वाला है, उसके लिए पैसे नहीं होते फिर आपके पास. आप तो दे रहे हो जिससे आपने लोन लिया उसको पूरा पैसा. इस चक्कर में क्या होता है, आपका पावर, आपका जो कैपिटल है, विच यू शुड इन्वेस्ट इन लर्निंग, ग्रोइंग योर बिजनेस इनिशियली, वो चला जाता है. फिर इंसान हाथ पैर मारते रह जाता है, फिर वो बोलता है डीमोटिवेटेड है, पैसे नहीं है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ देम स्टॉप ट्राइंग अ बिजनेस. बिकॉज प्लीज याद रखिए, अगर आप एक बिजनेस एस्टैब्लिश करते हो, हजारों लोगों के लिए पॉसिबली आप घर चलाने में हेल्प कर सकते हो. यस, या यू कैन, तेरे वजह से कम 100 घर चले. मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि कोई भी एंटरप्रेन्योर, तेरे वजह से कम 100 घर चले, ये मेरा आशीर्वाद है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए. 100 हाउसेस तुम्हारे वजह से चलना चाहिए. ये कब पॉसिबल है? जब तुम प्रॉपरली पैसा मैनेज करोगे, स्किल पे इंप्लीमेंट करोगे, और कुछ साल के लिए बस थोड़ा खर्चे का उपवास करो, यू विल फील बेटर. एंड आई कैन गारंटी यू दिस, यू विल नॉट रिग्रेट. अगर आपके ऐसे दोस्त हैं आजू बाजू who will laugh on this, get rid of them, delete their number, block them. You don't need them. Yeah. मुझे एक चीज बताओ, this is something I'm not here. Okay. I thought I'll just, मेरे को thought pass हुआ कि I should try this with you, and I used to do it in my starting podcast, but मैं थोड़ा इसमें डिलाइन हो गया. How do you manage your mental well-being when you're hustling? क्योंकि तुम्हारे मल्टीपल थ्रेड्स खुले हुए हैं ना, तुम कभी इस पे हो, कभी इस पे हो, कभी इस पे हो, कभी इस पे हो.
How do you handle this? So first, Do you meditate by any chance? I initially used to do uh, Isha Kriya. Then I switched to Sudarshan Kriya. And then it was very hyper for me. Then I switched to Transcendental Meditation, Mahesh Yogi. So, by the way, people find meditation is not sexy. Everyone wants to have some sexy experience out of meditation. Meditation does nothing but just put you back to your alignment. Yes. You need a clear mind to do a lot of things. So, one, sleep well. That is the most important thing. If you can, I would sound like your father, possibly your uncle, जो सा बुड्ढे uncle आके say, please stop having alcohol in your life. Alcohol adds no value to your life. Anyone on this planet can't convince me that alcohol has any value to your life. It messes up your young life, your body, because you need your body as an entrepreneur to do things that you want to do. It messes with your mental state as well. So sleep as well as you can. Secondly, you would want to do something which you really like. Nikki, this is the most important thing. अगर आप ऐसा कोई business कर रहे हो जहाँ जो बिजनेस आपको पसंद नहीं है इतना सा भी, वो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा और वो स्ट्रेस आपको मार देगा. लाइक अभी जो एक अंकल जो मुझे अभी ड्राइव करके लाए, उन्होंने बताया कि उनके दिल में 3 स्टेंट्स है क्योंकि उन्होंने एक रियल एस्टेट का बिजनेस डुबा दिया है. उस स्ट्रेस के वजह से उनका हार्ट हेल्थ खराब हुआ एंड ही गॉट अ हार्ट अटैक. नाउ ही इज रनिंग अ कैब. So he has come from there. He used to sell plots. Now, and he is regretting at the age of 55, 60, he's regretting the mistake which he has done. So that's exactly what I'm talking about. So you'll have to first take care of yourself. You are your only asset. So do that. Your right lifestyle is important. Sleep well. Avoid alcohol in life. And try to disconnect from things and chill. Do things what you really love. Now that uncle bichara is riding that cab, he doesn't like it. His ego gets triggered every time someone says, "Hey, क्या चला रहा है भाई? दिख नहीं रहा तुझे?" And उस चक्कर में क्या होता है? You are now doing something which you don't like. He doesn't understand what being a cab driver is. He has always been the Seth. 21 दिन वो दिन गिन रहा है कि सर मैं 21 दिन से चला रहा हूँ. So please do something that you really enjoy, and that will keep you in a very good state of mind. And finally, I would like to tell you, do not compare your journey with anybody else, because comparison is a thief of joy. So if you compare your progress with anybody else, it will only give you sadness. If you want to really compare what better did they do and what can I do better to become good at what you're doing. That's how you would want to have a better state of being. Okay. I'm glad तुमने ईशा क्रिया किया यार. Yeah, it's fun. I started with ईशा क्रिया only. Oh really? Yeah. I love it. I do it on and off, but nowadays I do a lot of TM because transcendental meditation puts me in transcendental state. So unfortunately, I never went to Shambhavi, of course, but Sudarshan Kriya would make me very hyper. Like my entire body would powerful, right? It's yeah, it gives you like shake in the body. Yeah, you're buzzing the whole time. You feel bzzz, the whole body going like that. Transcendental is so easy, you can do it anywhere and it's very comfortable. It puts you in the right state of mind. And now I'm going to deeper states of calmness where I can feel that disconnected state. So I'm a big promoter of TM. Everyone should know TM. So transcendental, big respect I'll learn about that. Maharishi Mahesh Yogi. What an invention he has given to the world. And there are centers. You have one here also at I think Rajouri Garden के वहाँ पे शायद से है. I'll check in the north. Oh, you should learn. Everyone should learn some kind of tea. And don't expect your meditation to be sexy. It's not supposed to be sexy. It's your thing. It's just your thing. Chill, like do something and move. Of course, move. That is also important. मुझे ईशा क्रिया बहुत अच्छा लग रहा था. Then I jumped into Shambhavi and it just clicked. But it took me time. It just clicked and there is no looking back. Then I went further. आगे चीजें की मैंने. Then I'm happy you're doing that because अभी वो आपको you liked it. It suited you. For me, I was on a constant hunt. नहीं suit हो रहा था. Trying. It's perfectly fine. I would always want to do a mandala, a complete mandala, like a 48 का mandala या फिर 90 mandala. I wanted to continuously do that. I was very good at it. But then I was still hunting and coincidentally this happened. Like one of my friends recommended कि ये करके देख and it works brilliantly for me. TM, and by the way, I did not know that. Recently, I came to know that a lot of Hollywood actors, big ones, even your Seinfeld, Jerry Seinfeld, who's a big comedian, they do TM properly twice a day. It's crazy. Right before their meals, 20 minutes, they disconnect, they sit. And the lovely part about this meditation is you don't have to do anything. That's the beauty of the meditation. You are doing nothing. It is so boring, right? But it's so phenomenal. I think one of the only meditations which will actually help you transcend and then be more creative.
Is it more like a shunya kind of thing where you just sit and Oh, it is beyond Shunya, because at Shunya there is nothingness. But as you dip beyond Shunya, then you have more creativity coming in. Then you have, so you are not controlling anything. You are watching your thoughts the whole time. But you are going into a state where you're completely detached, and it is as if you are floating. So it is slightly below Shunya, because at Shunya there is nothing, but your creativity starts popping in. And when you get off, you will get more ideas. You'll get more fresh outlook towards life. So I would say it is beyond someone gets Shunya. initiated into it? Is it like a Yeah, proper guru initiation. shishya? Guru Shishya Parampara, properly. Uh-huh. It's a 4-day thing or 5-day thing. Then Look first into it. initiation. But I would suggest everyone to not learn it on YouTube, because Like, proper no meditation initiation can be learned on you should YouTube. not. If it is proper Vedic Parampara, then one should not be learning it from YouTube, because there are a lot of do's and don'ts which only a guru will tell you ideally. Even if it is just It's a way they pour it into you. Yeah. I mean, it's stupid to talk on camera on that. They get into some layer of yours which you do not have access to. Like, for example, in TM they give you a Bija Mantra. A Bija Mantra is created for you. Exactly. Because everyone's possibly horoscope might be different, or state of mind, or profession would be different, and a specific Bija Mantra would not work well for them, or would not work well for the state of being they are in. So लोग ऐसा उठाते हैं YouTube पे, मैंने देखा है बस copy paste. That will not work here. This has to be done properly, and then you have to spend time. They don't invite you back for the advanced course so early. They like spend time, and once you're very sure, once you're reaching that state, only then come back. So yeah, I really like TM. I do it when I'm in flight. Sometimes I get knocked out and I go to sleep. That's what you're not allowed to do. You're not allowed to go to sleep. Yes. But sometimes I'm so tired that puts me into sleep. So I do that, but I'm consistent with it. Yeah. That's beautiful. I'll talk more about this post camera. Yeah, certainly. Post session. Okay. Good talk. Yeah, fun. I loved it. You loved it? Yeah, of course. Loved it? मुझे सबसे पूछना पड़ता ना ऐसे यार before we wrap up. अच्छा. Alright guys, this was our little podcast. The thing is, the podcast in which I listened more. Oh, okay. Is it? Yeah. Because there was a lot of things to learn. मेरे को ना sales का कुछ घंटा नहीं पता था. And you gave me a different perspective of sales, how it is put up into the whole business model. तो वो मुझे बहुत clear लगा. And there are few things that I'm gonna copy and steal is be interested to sound, or be more interesting to be more interesting. I think that's still echoing in my head. Yeah. Alright guys, we're gonna wrap up here. This is a pod with Nick. The link is in the description to Amrut's profile. If you have any questions, please go ask. सवाल ज़रूर पूछिए. Don't be dumb कि मुझे सब कुछ पता है. तुम्हें कुछ नहीं पता है. मुझे कुछ नहीं पता है. The moment you say मुझे सब पता है, you actually kill the possibility of knowing. We're gonna end up here. This is Pod with Nick. See you in the next episode. Adios, ladies and gentlemen.